हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। दिस एक्ट is one of the most important act from your EPFO exam perspective. The reason being, the EPFO organization as a whole is dependent on this act. All the powers, functions and regulation of EPFO organization are derived from EPF Act 1952. कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन का जुरिसडिक्शन, कौन कौन सी स्कीम्स ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी, कौन कौन से फंड्स ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करेगी और क्या क्या पावर्स रहेंगे ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के पास, सारी चीजें इस एक्ट के अंदर में मेंशन्ड है। लेट्स स्टार्ट दिस एक्ट। This act was enacted on 4th March 1952 with the objective to provide the institution of provident fund, pension fund or deposit linked insurance to the employees of various establishment. First section is short title, extent and application. That means what is the jurisdiction and what are the areas where this act is applicable. This act is applicable to the whole of India, to all the territories of India, and specifically, this act becomes applicable to any factory which is listed in Schedule 1 with 20 or more employees. Understand this thing. This act is applicable only when that particular factory or industry have 20 or more employees, and that factory should be listed in Schedule 1 of this particular act. Also, if the government desires, the central government can by notification increase increase the application of this particular act to any establishment with 20 or more employees. So understand two things. First thing, it is applicable to all the establishment mentioned in Schedule 1 with 20 or more employees. Plus, the central government can also extend it to any other establishment with 20 or more employees. But the central government also has the power to make this act applicable to any establishment which have less than 20 employees. But in that case, the government has to give at least 2 month notice of its intention to do so. So here are three provisions. It is very important from exam perspective. The direct question can be asked from this section. So where it is applicable, 20 or more employees in Schedule 1 of this act, plus any establishment with 20 or more employees notified by the central government, or any establishment with less than 20 employees notified by central government, but it must be given at least a 2 month notice before notification of the establishment under this act. Plus, any employer and majority of the employees working in that particular establishment, they want that this act should be covered in that establishment, they can also apply for its application to their particular establishment. So voluntarily, employer plus majority of the employees can also agree and may apply to the commissioner for application of this act to their establishment. Plus, once this act becomes applicable to any establishment, now it remains applicable no matter the number of employees, whether they are 20, above 20 or below 20. So once it becomes applicable, it will remain applicable for lifetime of that particular establishment. Next is definition. Definition section is one of the most important section of any act. First is appropriate government, सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है कि बहुत सारे एरियाज में कौन सी गवर्नमेंट जो होगी वो अप्रोप्रिएट होगी, या जो जिसके पास अथॉरिटी होगी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ अथॉरिटी होगी? इन केस ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट विच इज वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एनी एस्टेब्लिशमेंट कनेक्टेड विद रेलवेज, पोर्ट्स, माइंस, ऑयल फील्ड और एनी कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज। इन सारे एरियाज में सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, plus any establishment which have branches in more than one state. That means multi-state establishment plus establishment under the control of central government plus establishment connected with railway, ports, mine, oil field or control industries will be under the central government, and central government in these cases will be the appropriate government. Plus state government will be appropriate government in all of the establishment which is not mentioned above. Who is an authorized officer under this act? Any CPFC, Central Provident Fund Commissioner, any additional deputy regional PF commissioner, or any other officer notified by the central government. What is the basic wages? We will need basic wages to calculate multiple things. So what is the definition of basic wages? All emoluments earned while on duty, leave or holiday paid in cash. Means whatever you have earned which is earned while you were on duty,
or while you were in leave or any holiday, but it must be paid in cash. So it can be EL, earned leave, it can be normal wages during the working period, but it does not include food concession. If you are getting any kind of food concession, it is not included. DA, dearness allowance, HRA, house rent allowance, bonus, commission, overtime is also not included. Plus, any type of gifts or presents by the employer is also not included. The reason being, we are trying to calculate a wages that is sustainable over the lifetime of that particular employee in that establishment. Food concessions may vary. Food concessions are not part of the wages. They might, some in this establishment might be giving food concession, some might not be giving. DA depends, HRA depends on the kind of city you are living. Bonus, commissions, overtime are not regular payments, are kind of one time, two time payments, and any type of gift is not a regular payment. So we are trying to capture the regular wages that a particular employee is getting. Next is contribution. Contribution means whatever amount is payable by a member under the scheme or for an employee under the insurance schemes. So the member means employer or employee. They can be paying something to the EPF organization. Whatever they are paying, now it is called contribution to the EPF scheme or pension scheme or ADLI scheme. Next is controlled industry. It is an important, all the definitions given in this section are very important. Just learn them by heart. Controlled industry means whose control by the union is declared under a central act to be in public industry. In public interest, that means whose working is regulated by some union act. It cannot work freely. It doesn't have all the powers which normal companies have. It has to work under the rules and regulation mentioned in that particular central or union act. Means the industry is controlled by the union. What is the definition of an employer? If in case of a factory, employer means any owner of the factory, occupier of the factory, or any agent of such owner or occupier, or any legal representative of a deceased owner or occupier, or any manager of the factory under the Factories Act. All these individuals are called employer in case of a factory. And in case of any other establishment, any person who have the ultimate authority and ultimate control over the affairs of such establishment can be considered as an employer. He can be a manager or a managing director or a managing agent, anyone, whatever the name is, the individual who is having the ultimate authority or control over the affairs of that particular establishment is called employer under this act. All the acts have different definitions. So just make sure that you are reading the definition of that particular act, learning it. So whenever you are reading now multiple acts, try to differentiate between definitions. If there is definition of child now, make a table and mention that in this particular act, the child definition is above 14 years, in some cases 15 years. So whatever it is now, make a table out of it and try to differentiate between the definition of similar things in different acts. Next is employees. Who can be an employee? Any individual who has been employed for wages in any capacity. That means if he is getting wages and he has been employed in any role, no matter what, then he would be considered as an employee. It includes anyone who has been hired by the contractors or any apprentices, excluding those under the Apprentices Act 1961 or any standing orders. Means whether you are a trainee or whether you have been hired through contractor, not directly, then also you will come under the definition of employer, and the employer will be liable for payment of contribution in respect of these kinds of employees. What is exempted employees? Means anyone who otherwise would be covered under this act but has got an exemption under the section 17. We will see section 17, but just understand the individual otherwise would be covered, but he got exemption under section 17 somehow. Next is exempt establishment. Same, any establishment which has been exempted from particular acts or schemes by section 17. Factory means any premises where manufacturing is carried out with or without power. All these definitions are important. Just read through 3 times, you will get a hold of it. So it's difficult as of now, but you will understand these things. Factory means anything, any place where manufacturing is carried out with or without power. Fund means any provident fund. Whenever we are talking about the fund, it means provident fund. Industry means any industry in Schedule 1 or notified later under
Section 4. Insurance fund means deposit linked insurance fund. There are three schemes under this act. You have to understand. First is provident fund scheme. Second is pension scheme. And third is ADLI scheme, employee deposit linked insurance scheme. The main role of EPFO organization is to maintain all three schemes and ensure that the contribution has been given properly and all the funds are disbursed under these schemes properly to the employees. So if we are talking about the fund, normal fund, it is provident fund. If you are talking about the insurance fund, it means deposit linked insurance fund. This means whatever the money we are getting under the PF scheme or insurance scheme or pension scheme, it is going to that particular fund and will be used through this particular fund. There is no common fund. There is specific funds for specific schemes. If you are talking about insurance scheme, that means we are talking about employer deposit linked insurance scheme under section 6C. If you are talking about the manufacturing process, that means anything includes making, altering, repairing, finishing, packing, washing, etc. of articles for use in sale of transport. Member means any member of provident fund, and occupier of a factory means the individual who has the ultimate control over the affairs of the factory, or any managing agent of the factory such as manager or managing director will be called as occupier of the factory. Next is section 2A, establishment to include all department and branches. That means if that particular establishment have multiple branches, whether at the same location or whether at the different location, then they should be treated as a single establishment, not as different establishment. Understand? Assume you want to apply this act to a particular establishment, but the establishment says कि इस department में 20 से कम employees है, but then you will consider that this whole organization, including all the department, must have more than 20 employees. चाहे एक में कम हो, लेकिन सबको मिलाकर अगर 20 से ज़्यादा employees हो रहे हैं तो वहाँ पे ये act applicable हो जाएगी. And also for various other purposes also we use this definition. Next is section 3, applicability to establishment with common provident fund. Assume before the application of this act that particular industry or establishment has a common provident fund. It can be for a single establishment or it can be a multi-establishment fund. So the government can also ensure that this act applies to such establishment. So whenever this act applies, that common employee provident fund, all the money in that provident fund will be transferred to the R fund plus, and that fund will cease to exist. But there is also some other cases in which the government allows these particular organizations to operate their own fund with permission. Next is section 4, power to add to schedule 1. We have talked about the schedule 1. It includes all the industries where this act is applicable. So central government have the power to notify addition of any new industries to schedule 1. This is important. Just understand one thing. The central government have the power, not the state government. Only the central government have power to include industries in the schedule 1. Other things are not that much important. Section 5, employee provident fund schemes. We have talked about three schemes: employee provident fund scheme, employee pension schemes, and employee deposit linked insurance schemes. These are the three most important schemes that are being used or run by EPFO organization. So is it talking about the scheme when the act was enacted that central government may frame a scheme which will be called employee provident fund scheme, and it should apply to all the establishment in schedule 1, and also a separate fund will be established which is called employee provident fund, in which all the money or all the fines, fees under this act will be deposited, and this fund will be managed by or administered by central board under section 5. So you have to understand some hierarchy of the organization. EPF organizations, there is central board which is the topmost authority in this organizations. Under its control, everything else is managed. So we have central board, then we have various other subsidiary bodies, ZO, HO, RO, ZO, RO, HO, DO. So main function is of central board. It decides the policies, it frames rules and regulations, it appoints the officers, and then under the authority of that particular board, we all function. Section 5 also talks about Central Board of Trustee. So we have already covered section 5. That means employee provident fund scheme. It will apply to all the establishments mentioned in schedule 1, and this may also cover any matter mentioned in the schedule 2. So apply to schedule 1 establishment.
plus any other establishment notified by the central government. In addition to that, the matters which will be covered under this act will be mentioned in Schedule 2 of this particular act. This is the main function of employee provident fund schemes. Next is Section 5A, Central Board of Trustee. It is appointed by central government, obviously, and it is also called Central Board, and we usually call it CBT, Central Board of Trustee. So what is the composition of this CBT? There must be a chairman and vice chairman appointed by the central government. Chairman is usually Minister of Labor and Employment of central government, will act as the chairman of this particular CBT also. There is a Central Provident Fund Commissioner who is an ex officio member. Sometimes they are appointed from the IAS cadre and sometimes from any other cadre of the central government. There are other 5 central government officers who are appointed by the central government, 15 state government representatives who are appointed by central government as specified by the state government. They ask representation from the state government, but the final appointment is done by central government. There are also 10 employers representatives who are appointed in consultation with the employer organizations, and 10 employee representatives who are appointed in consultation with the recognized employee organizations. So understand one thing, there is chairman, vice chairman. There is a CPFC. He is an ex officio member. He is not the chairman. Chairman is generally a Minister of Labor, and CPFC is ex officio member. There are 5 central government representatives. There are up to 15 state government representatives, also 10 employer representatives and 10 employee representatives. Whenever we will talk about representation of employer and employees in a particular board or committee constituted by the government, now, in most of the cases, you will find equal representation of both the employees and employers, because we want to ensure that both have equal voice in any kind of board, committee, or any institution. So 10 employers, 10 employer, 5 central government, 15 state government, chairman, vice chairman, CPFC. What of the terms, condition, meeting procedures will be mentioned in the acts or mentioned in the Employer Provident Fund scheme, which is a different scheme on which a complete document has been produced and framed by the central government. It administered the fund as per schemes. It administered Employer Provident Fund. It administered Employer Pension Fund, and also Employer Deposit Linked Insurance Fund. It must maintain proper accounts. It must ensure that its accounts are properly and annually audited by the CAG, and the CAG has the full authority for audit. That means it can do whatever it want to ensure that the audit has been conducted in a fair manner, and the CAG will present its audit report along with the certified account to the central government, and the central government will forward these accounts to the central government. CAG will present this audit report and certified account to the central board, and then central board will forward these accounts to the central government with board's comment. This is nothing that much important. You have to just understand the composition of CBT, and you can just understand one thing, that CAG audits and certify the accounts of central board. Next is Section 5AA, Executive Committee. So we have talked about CBT. There is also an executive committee which is framed to assist the central board in performing the functions. So obviously central board doesn't have all the resources to perform all the functions mentioned under this sector, all the 3 schemes. So they appoint a executive committee who do day-to-day functions, and it can be it is framed by central government by a different notification. So it have a chairman who is appointed from the central board members. Whoever becomes the member of CBT becomes eligible to become a chairman of executive committee. So all the members elect the chairman, and he is appointed as the chairman of executive committee. There is 2 members from the central government officials. So we talked about 5 central government officials are appointed in under CBT. So out of that, 2 will become a member of executive committee. Out of 15 of state government representatives, 3 will become members of executive committee, and out of 10 of employees representatives, 3 will become members here, and out of 10 employee representatives, 3 will become members here. So all the employer and employee representatives are elected by the central board, means central board will decide out of 10 who 3 will go, and in case of 2 members from central government, in case of 3 members from state government, those officials will decide who will go from them.
And CPFC here also will act as an ex officio member. So just compare between both. First is CBT, chairman, vice chairman. CPFC, ex officio member. There are 5 central government representative, 15 state government representative, 10 employee and employees representatives. In case of executive committee, chairman appointed from among the central board members, 2 members from central government representatives, 3 from state government representatives, 3 from employers, and 3 from employee representatives. So total in this case, executive committee, it is 12 members. But in case of CBT, it were 1 plus 1 chairman plus vice chairman plus CPFC 3, 5, 15, 10, 10. That means 43 members in that case. Next, we move to State Board of Trustee. Just like the Central Board of Trustee, there are also State Board of Trustees, which are also constituted by the central government, but in consultation with the state government. So all the 3 bodies are constituted by central government. But in case of State Board of Trustee, the consultation of state government is also taken. And the main role of State Board of Trustee is to administer the PF provisions at the state level. Central Board of Trustees' role is to implement the PF provision at central level, and for State Board of Trustees, it is at the state level. What the power and duties are assigned by the central government from time to time. Next is section 5C, Board of Trustee to a corporate body. That means whether central board or state board are body corporate. That means that have perpetual successions, they have common seal, they can be sued or they can sue others by their own name. Next important section is section 5D, appointment of officers. So you are going to become an officer of the EPF organizations. In order to understand what are the various officers appointed under these organizations, this section is important. First, we have already talked about CPFC, Central Provident Fund Commissioner. So from our officer's perspective, he is the supreme authority in EPFO organizations. But from organization perspective, CBT is the main authority. From officer's perspective, he is the top officer. From organization's perspective, CPT is the top authority or top body. So CPFC is appointed by central government and he acts as CEO of the central board. He acts as chief executive officer of the central board, and he is also ex officio member of the central board, and he works under the general direction and supervision of the central board. Along with that, the central government also appoints 2 more officers. One is financial advisor, another is chief account officers. Main role of these both officers is to assist the CPFC in his or her duties. So CPFC is appointed by central government. Central government also appoint 2 other officers, financial advisor and chief account officer, to assist the central government CPFC. Plus, there are some other officers appointed by the central board. Now, it's role of the central board to appoint all other officers. Initially, it was CPFC who were appointing, it was central government who was appointing CPFC, FA and COA. But now, from all the other officers, central board will appoint them. So all the other officers, they can be additional commissioner, deputy commissioner, regional commissioner, assistant PF commissioner. They all will be appointed by central board, and any other officer. It can be EPFO, EOO, SSA. All other officers below the level of APFC are also appointed by the central board. So, but in case of Group A and Group B post, so we are giving this exam now. APFC is a Group A post, EOO is a Group B post. But in case of both these posts, the central board has to consult the UPSC. So UPSC will take the exams, conduct an interview and give a list of officers to the central board, and central board will appoint them. It is mandatory to consult the group UPSC for Group A and Group B post. If the appointment is temporary, that is, it is for less than 1 year, then it is not necessary to consult the UPSC. If the appointee is already a member of IAS, or he has been already serving in the central government or state government or central board in Group A or Group B post, in that cases, he is not, in that cases, central board is not mandated to consult the UPSC. 3 चीजें याद रखो. पहला तो ग्रुप ए ग्रुप बी अगर अपॉइंट करना है तो आपको मैंडेटरीली सेंट्रल बोर्ड को मैंडेटरीली यूपीएससी को कंसल्ट करना पड़ेगा.
लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर अपॉइंटमेंट टेम्परेरी है, लेस देन 1 ईयर के लिए है, तो उसमें यूपीएससी का कंसल्टेशन जरूरी नहीं है। अगर जो अपॉइंटी है वो ऑलरेडी आईएएस का मेंबर है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। और या फिर किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल बोर्ड के अंदर में काम कर रहा है और वो ग्रुप ए या ग्रुप बी का पोस्ट का ऑफिसर है, उस केसेस में भी यूपीएससी का कंसल्टेशन जरूरी नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, सॉरी स्टेट बोर्ड जो भी है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ में अपना स्टाफ अपॉइंट कर सकती है। और जो सीपीएफसी, एफए, सीओ है, इनका अपॉइंटमेंट तो किसके द्वारा हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसकी सर्विस कंडीशंस, रिक्रूटमेंट, वो सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन जो सैलरी होगी वो फंड से पे की जाएगी। फंड मीन्स प्रोविडेंट फंड। ऑल द अदर ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, उनके रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह ही होंगे। चाहे आप ईपीएफसी बन जाए, चाहे आप ईओएओ बन जाए, कि जो आपके ऊपर भी जो रूल्स एप्लीकेबल होने वाले हैं, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, सेम रूल्स आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। हाँ, अगर सेंट्रल बोर्ड चाहता है कि कोई डेविएशन होना चाहिए, उनके ऊपर कोई अलग रूल एप्लीकेबल हो, तो उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और पे का मैटर है, कुछ भी मैटर है, सारे इश्यूज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर कर दो और उनका डिसीजन फाइनल होगा, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ की भी, हमारी भी सैलरीज जो भी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की इक्विवेलेंट ही होगी। व्हाट अबाउट द स्टेट बोर्ड स्टाफ? देयर रूल्स विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट बोर्ड एंड दे रिक्वायर द अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट बोर्ड में स्टेट गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होगा और जो भी रूल्स बनाएगा वो स्टेट बोर्ड खुद बनाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 5DT, वैलिडिटी ऑफ एक्ट डिस्पाइट इफेक्ट। मतलब any act or anything, any action done by central board, executive committee or state board, they cannot be invalidated. They cannot be called invalid or illegal on the account that there were some vacancies in these committees or boards, or any defects in the constitution of these boards. As much as they comply to the provisions of this particular act, the laws of the country, they will be called valid and remain valid. Next is section 5, delegation of powers. The central board can delegate its power to executive committee, chairman or its officer. Same with the state board. The state board can also delegate its power to chairman or officer. क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं है स्टेट बोर्ड के केस में, क्योंकि सिर्फ एग्जीक्यूटिव जो कमेटी बनती है वो सेंट्रल बोर्ड के केस में एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है। स्टेट बोर्ड में एग्जीक्यूटिव कमेटी का प्रोविजन नहीं है, वहाँ पे आप चेयरमैन या किसी और ऑफिसर्स को पावर को डेलीगेट कर सकते हो। अब आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 6, कंट्रीब्यूशन एंड स्कीम प्रोविजंस। वैसे इस एक्ट के सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, कुछ एक को छोड़ दो, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनेंगे। 2-3 क्वेश्चंस आपको हर पेपर में मिलेंगे। इस बार दोनों पेपर साथ में, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है। सबसे बात है कंट्रीब्यूशन एंड स्कीम प्रोविजंस। कंट्रीब्यूशन का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल जो है कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स दीज पर्टिकुलर स्कीम्स। वर्सेस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, दो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय भी करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स दीज फंड्स। पहला है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस। दिस एक्ट टॉक्स अबाउट 10% कंट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक वेज, डीएनएस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। मतलब जो एम्प्लॉयर है बेसिक वेज कितनी दे रहा है, प्लस डीए कितना दे रहा है, प्लस रिटेनिंग अलाउंस कितना दे रहा है। बेसिक वेज की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देख ली है, डीए क्या होता है, डीएनएस अलाउंस, और रिटेनिंग अलाउंस आर ए, तीनों को मिलकर आके उनका जो 10% होगा उतना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। चाहे वो किन किन एम्प्लॉयज के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे उसने उसको डायरेक्टली एम्प्लॉय किया हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय किया है, तो उनके केस में भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंट्रीब्यूशन दे टू द पीएफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय भी उतना ही करेगा जितना एम्प्लॉयर करेगा, ठीक है। और एम्प्लॉय चाहे तो वॉलंटरीली हायर कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है अबो 10%, पर उस केसेस में एम्प्लॉयर भी मैच नहीं करेगा, एम्प्लॉयर 10% तक ही देगा, लेकिन एम्प्लॉय जो है अपने हिसाब से इससे ज़्यादा भी दे सकता है। लेकिन अब तक ये बात थी 10% की। इस एक्ट के अंदर एक और प्रोविजन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे तो नोटिफिकेशन से इस रेट को 12% भी कर सकती है फॉर स्पेसिफिक एस्टेब्लिशमेंट एंड क्लासेस। तो अभी जनरल लाइन में बात करें तो जनरल जो रेट हो चुकी है वो हो गई है 12%। मतलब अभी एम्प्लॉयर 12% ऑफ बेसिक वेजेस डीए प्लस आर ए कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली एम्प्लॉय भी 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस आर ए कॉन्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन सारा पैसा पीएफ में नहीं जाता है। हमने 3 स्कीम्स की बात की, पेंशन स्कीम, पीएफ स्कीम एंड ईडीएलआई स्कीम। तो पैसा सब में जाएगा, कैसे जाएगा वो इंपॉर्टेंट है,
आपको उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से देखना है। बेसिक बात कर ली, 12% कॉन्ट्रीब्यूशन रेट है, लेकिन जो एम्प्लॉय है उसका सारा 12% जाएगा ईपीएफ में। एम्प्लॉय का 12% पूरा का पूरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर का जो पैसा है वो बट जाएगा 3 जगहों पे। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना, 12%, उसमें से 3.6% जो है वो जाएगा टुवर्ड्स ईपीएफ स्कीम, 8.33% जाएगा टुवर्ड्स ईपीएस स्कीम मतलब पेंशन स्कीम, और एडिशनल 12% के ऊपर 0.5% कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा ईडीएलआई स्कीम में। मतलब 12% जो था एम्प्लॉय का वो तो पूरा चला गया पीएफ में। अब 12% जो एम्प्लॉयर का है उसमें से पहला 3.6% जो है वो चला गया किसके पास, ये जो 3.6% है वो चला गया पीएफ स्कीम में, और 8.33% जो था वो चला गया पेंशन स्कीम। इसका रीजन समझो। पीएफ मीन्स आपकी सेफ्टी के लिए वो आपने एक पैसा रखा है। पेंशन मतलब जब आप सुपर एन्युएट हो जाओगे, आप बूढ़े हो जाओगे, तो आपको अपना जीवन चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा, तो पेंशन स्कीम में आपने डाला है। ईडीएलआई का मतलब है कि आपको डेथ होगी ड्यूरिंग द सर्विस, देन यू विल गेट सम मनी फ्रॉम द ईडीएलआई स्कीम। तो ये आपके तीनों चीजों की प्रोटेक्शन के लिए 3 स्कीम्स बनी है। एम्प्लॉय का पैसा पीएफ में क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको अपने लिए सेव करने की जरूरत है। वो बुढ़ापे के लिए नहीं देख रहा, पीएफ का पैसा है, उसको कुछ भी कर सकता है। कोई इलनेस हो गई, कोई भी चीज हो गई, नेचुरल कैलामिटीज आ गई, उसको घर बनाना है, बच्चों की शादी करवानी है, बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है, उन सब के लिए इस पैसे को विड्रॉ कर सकता है। तो 12% उसका चला गया, 3.67% एम्प्लॉयर का चला गया। ठीक है, तो ये से उसकी एक रेगुलर लाइफ की सेफ्टी नेट बन गई थ्रू पीएफ स्कीम। अब उसकी पेंशन की भी सेफ्टी रखनी है, तो 8.33% फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन विल गो टू द पीएस स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम्स। इसको आप एडवांस नहीं ले सकते, इसका ऐसा नहीं कि जैसे पीएफ स्कीम से आप एडवांस निकाल सकते हो, बहुत सारे मल्टीपल प्रोविजन है इसके लिए आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन पेंशन स्कीम के लिए पैसा निकालने के लिए आपको स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। और आपकी अगर 10 ईयर्स की सर्विस ज़्यादा हो गई है तो आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते, सिर्फ आपको पेंशन मिलेगी। तो इस 8.33 मेन पर्सपेक्टिव ये है कि आपकी फ्यूचर की सेफ्टी आफ्टर रिटायरमेंट वो प्रॉपर मेंटेन रहे, सोशल सिक्योरिटी रहे वहां पे भी। और 0.5% का कंट्रीब्यूशन अब वो 12% है, ताकि आपको अगर डेथ इन सर्विस हो जाती है उस केस में आपको एक इंश्योरेंस स्कीम भी हो। तो ये 3 स्कीम्स है, एम्प्लॉयर तीनों में कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय जो है सिर्फ एक में करता है। एम्प्लॉय अपने रेगुलर लाइफ के लिए देख रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसकी तीनों लाइफ के लिए, चाहे प्रेजेंट लाइफ हो चाहे आफ्टर रिटायरमेंट वाली लाइफ हो, और मान लो उसकी डेथ भी हो जाए तो उसकी डेथ के बाद में, ताकि उसकी फैमिली सेफ रहे, उसके बारे में भी सोचता है। ये तो हो गया 12% कॉन्ट्रीब्यूशन का। अभी स्टैंडर्ड रेट कितना है, 12%, लेकिन बहुत सारे केसेस में 10% कॉन्ट्रीब्यूशन भी अलाउ हो सकता है। अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में 20 से कम एम्प्लॉयज, या फिर कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है और उसको सिक डिक्लेयर किसने किया है, BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, उसने सिक डिक्लेयर कर दिया। या फिर कोई भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट में जिसने एट द एंड ऑफ द ईयर who has accumulated losses equal to or exceeding its net worth, मतलब जितनी उस कंपनी की नेटवर्थ नहीं है उससे ज्यादा तो उसको लॉसेस हो गए, तो उस केस में भी उसको 10% रेट एप्लीकेबल होगा। और एनी इस्टेब्लिशमेंट जो जूट के एरिया में काम कर रही है, जो बीडी के एरिया में काम कर रही है, ब्रिक के एरिया में, कॉयर के एरिया में, या ग्वारगम की जो फैक्ट्रीज है, इन सब पे भी 10% रेट एप्लीकेबल होता है। रीजन भी कि इन सारी इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी इतनी नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके पास इतने नहीं होंगे कि वो 12% कॉन्ट्रीब्यूशन दे, तो उन केसेस में उनके ऊपर 10% का रेट एप्लीकेबल होगा। और डीए की जब भी हम बात कर रहे हैं तो इसमें कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन जो है वो इंक्लूडेड है। डीएनएस अलाउंस की जब बात करें, बेसिक प्लस डीए प्लस आर है, तो डीए में जो भी फूड कंसेशन का जितना आपको मिला है उसका कैश वैल्यू कितना होगा वो भी आपकी वेजेस में ऐड होगा ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन ऑफ 12% और 10%। रिटेनिंग अलाउंसेस मीन्स एनी पेमेंट ड्यूरिंग द नॉन वर्किंग पीरियड टू रिटेन द एम्प्लॉय इन सर्विस। तो कहीं बार हो सकता है कि काम नहीं है, लेकिन आप फिर भी पेमेंट कर रहे हो ताकि आप उस एम्प्लॉय को लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन कर सको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए। तो डीए प्लस आरए प्लस बेसिक वेजेस, ये याद रखना अच्छे से। इसका 12% निकालेंगे, एम्प्लॉय का पूरा 12% जाएगा, एम्प्लॉयर का 3.67% जाएगा टूवर्ड्स ईपीएफ, 8.33 जाएगा टूवर्ड्स ईपीएस, एंड एडिशनल 0.5% जाएगा टूवर्ड्स ईडीएलआई। अब आते हैं नेक्स्ट स्कीम पे, सेक्शन 6A एम्प्लॉय पेंशन स्कीम।
सेम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बना सकती है। उसका मेन पर्पस क्या होता है? इन केस द इंडिविजुअल और एम्प्लॉय सुपर एनुएट, मतलब उसका समय पूरा हो गया है उसकी सर्विस का, या रिटायरमेंट ले लेता है, या डिसेबल्ड हो जाता है, टोटली डिसेबल्ड हो जाता है, तो उस केस में उसको पेंशन मिले, या उसकी डेथ हो गई तो उसके विडो या विडोवर को पेंशन मिले, या उसके बच्चे, या उसकी वाइफ की या स्पाउस, दूसरे स्पाउस की वाइफ या हस्बैंड किसी की भी डेथ हो गई है, उस केस में बच्चों को ऑर्फन पेंशन भी मिले। तो तीनों तरीके की पेंशन है, सुपर एन्युएशन, रिटायरमेंट है, टोटल डिसेबलमेंट है, विडो विडोअर है, चिल्ड्रन या ऑर्फन पेंशन है, वो उनको मिल पाए और उनकी लाइफ आगे भी चलती रहे अच्छे से। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बनाई है। साथ में एक पेंशन फंड भी क्रिएट किया है। जो भी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का पैसा आएगा वो किस में जाएगा? एम्प्लॉय पेंशन फंड में। अभी कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस फंड के अंदर? इसमें भी प्रोविजंस दे रखे हैं। मैक्सिमम जो है एक एम्प्लॉयर से हम 8.13% ऑफ द वेजेस प्लस डीए प्लस आर हम ले सकते हैं। हम उतना ही ले रहे हैं, 8.33% ही ले सकते हैं, और 8.33% हम ऑलरेडी ले रहे हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। और इसमें और पैसा कहाँ से आएगा? हम बात करें फंड में पैसा कहाँ से आएगा। पहला तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8.33% जो ले रहे हैं, प्लस बहुत सारी एग्जम्प्टेड स्टेब्लिशमेंट है, तो वहां से भी पैसा आएगा। हमने एग्जम्प्ट कर दिया उनको प्रोविजंस में, लेकिन उनको पेंशन स्कीम में पैसा डालना पड़ेगा। ठीक है। एनी एसेट्स ऑफ द सीज फैमिली पेंशन स्कीम, इससे पहले भी एक फैमिली पेंशन स्कीम चलती थी। जब ये स्कीम आई उससे पहले एक फैमिली पेंशन स्कीम चलती थी। उस समय भी उसके जो भी एसेट्स थे वो सारे के सारे आ जाएंगे एम्प्लॉय पेंशन फंड के अंदर में। और कुछ भी अमाउंट जो है पार्लियामेंट अप्रोप्रिएट करता है, पार्लियामेंट कुछ पैसा देता है, वो भी सारा पैसा मिला के वो पैसा बन जाएगा एम्प्लॉय पेंशन फंड का पैसा। और उस पैसे से हम पेंशन देंगे टू द एम्प्लॉयज फॉर वेरियस रीजंस। जो वही बात की, जो फैमिली पेंशन स्कीम थी वो सीज हो गई ऑपरेट में, उसकी जो भी असेट्स लाइबिलिटीज थी वो ट्रांसफर हो गई टू द दिस न्यू पेंशन फंड। और इस स्कीम को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। और इसमें कौन कौन से मैटर्स होंगे? शेड्यूल 3। ईपीएफ में कौन से? शेड्यूल 2। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में शेड्यूल 3 के जो भी मैटर्स है वो सारे स्कीम में इंक्लूड हो सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है सेक्शन सी, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। मेन सेम पर्पस, to provide insurance benefit, life insurance benefit to the employees of establishment on which this particular act applies। कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? इसमें मैक्सिमम 1% से ज्यादा आप कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते ऑफ द एम्प्लॉइज वेजेस। अभी हम कितना ले रहे हैं? 0.5% ऑफ द वेजेस, तो मैक्सिमम 1% ले सकते हैं, अभी हम 0.5% ले रहे हैं। और ये रेट कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिसाइड करती है कि हमको कितना पैसा लेना है फॉर प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। प्लस अदर देन दिस 0.5% ना, देर आर सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब इस स्कीम को रन करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो उसको भी देना पड़ता है। तो उस केस में एम्प्लॉयर जो है मैक्सिमम 1/4 ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसको एज एक्सपेंसेस देगा। मतलब जो 0.5% है उसका 1/4 जो है अप टू दैट एम्प्लॉयर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की तरह देगा, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है उसको कवर किया जा सके। ये पैसा आपके बेनिफिट में इंक्लूड नहीं होगा, ये पैसा सिर्फ फंड के एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। जब भी आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो विल मिलेगा 0.5% के बेसिस पे। ये जो भी 0.5% के ऊपर का जो पैसा है, 1/4 ऑफ 0.5%, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, वो उसमें ही जाने वाला है। इस फंड को भी कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? सेंट्रल बोर्ड। और इस फंड में कौन कौन से मैटर्स इंक्लूडेड होंगे? शेड्यूल 4 के। तो आपको हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग आ सके, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। शेड्यूल 1 में क्या है? इंडस्ट्रीज, जहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल है। शेड्यूल 2 में वो सारे मैटर्स हैं जो पीएफ स्कीम कवर करेंगे। शेड्यूल 3 में वो सारे मैटर्स हैं जो ईपीएस स्कीम कवर करेगी। और शेड्यूल 4 में वो सारे मैटर्स हैं जो ईडीएलआई स्कीम कवर करेगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 7, मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, चाहे ईपीएफ है, पेंशन है, इंश्योरेंस स्कीम है, इनको मॉडिफाई करें, अमेंडमेंट करें, या कुछ भी चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। और जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको उनको पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा फॉर 30 days। पार्लियामेंट चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है और या फिर रिजेक्ट कर सकती है, अपने हिसाब से नए मॉडिफिकेशन भी ले सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 7 है डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यूज फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। अब एम्प्लॉयर से पैसा कितना बाकी है और उसकी रिकवरी वगैरह सारी चीजें भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटीज पावर्स दे रखे हैं इस एक्ट के अंडर में। कौन अथॉरिटी है जो डिटरमाइन करेगा कि कितना पैसा बाकी है? सीपीएफसी कर सकता है, एडिशनल पीएफ कमिश्नर कर सकता है, डेप्यूटी पीएफ कमिश्नर कर सकता है, रीजनल पीएफ कमिश्नर कर सकता है, या असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर कर सकता है। मतलब आप इस एग्जाम की बात करें तो एपीएफसी जो है
उसके पास पावर्स है, वो डिटरमाइन कर सकता है कि कितना पैसा बाकी है फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। दे ऑल्सो डिसाइड कि वेदर दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एन एस्टेब्लिशमेंट और नॉट, कितना ड्यू है वो भी डिसाइड करेंगे, और कोई भी इंक्वायरी वगैरह भी करनी है तो वो भी कर सकते हैं फॉर दिस डिटर्मिनेशन। और जब भी ये इंक्वायरी कर रहे हैं, इनके पास सिविल कोर्ट के पावर है, मतलब एविडेंस मंगवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकते हैं, और चाहे तो कमीशंस भी इश्यू कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशंस। और इनकी जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी दे विल बी कंसिडर्ड एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर आईपीसी सेक्शन 193 टू 288 196। मतलब मेन चीज याद रखो कि इनकी जो प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, और इनके पास सिविल कोर्ट के पावर्स है। कोई भी ऑर्डर पास हो रहा है, चाहे मनी के डिटर्मिनेशन का या एक्ट के एप्लीकेशन का, बिना सामने वाली पार्टी को सुने, उसको अपॉर्चुनिटी दिए अपनी बात रखने का, तब तक ऑर्डर पास नहीं होगा। अगर मान लो कि ऑर्डर पास हुआ, या फिर जो कमिश्नर है कोई भी, वो चाहता है कुछ डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है, कुछ भी चीज़ है, ठीक है, बुलाना चाहता है, उसको अटेंड करवाना चाहता है, विटनेस चाहता है, वो नहीं आते हैं, तो उस केस में ऑफिसर जो है एक्स पार्टी भी प्रोसीड कर सकता है। मतलब बिना किसी की नीड के, बिना उसको बुलाए, बिना उसकी बात सुने भी प्रोसीड कर सकता है। ऑफिसर में प्रोसीड एक्स पार्टी बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिकॉर्ड, उसके बाद जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे वो अपनी इंक्वायरी स्टार्ट कर सकता है। नाउ इज सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर। मान लो ऑफिसर ने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, पार्टी को नहीं सुना, पास कर दिया। अब एम्प्लॉयर को सेटिस्फेक्शन नहीं है उस ऑर्डर से, देन एम्प्लॉयर कैन अप्लाई विद इन द 3 month टू सेट असाइड दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। इन व्हाट केसेस? इफ ही सेज दैट नोटिस वाज नॉट सर्व प्रॉपर्ली, और ही वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट ग्राउंड, मतलब वो प्रेजेंट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सफिशिएंट रीजंस, या नोटिस ही प्रॉपर्ली सर्व नहीं हुआ। लेकिन मीन्स दो ग्राउंड्स पे ही वो वापस अप्लाई कर सकता है टू सेट असाइड एन एक्स पार्टी ऑर्डर विद इन 3 months। लेकिन वो सिर्फ इस ग्राउंड पे अप्लाई नहीं कर सकता कि जो सर्विस, जो शो कॉज नोटिस है उसको सर्व करने में कुछ इरेगुलरिटी हुई है, या कुछ और अदर इश्यूज हुए हैं। मतलब सिर्फ दो इश्यूज के बेसिस पे ही वो एम्प्लॉयर जो है अप्लाई कर सकता है फॉर सेट असाइडिंग, फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर। अगर मान लो अपील जो है वो ऑलरेडी विड्रॉ, अपील जो है ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, ठीक है, उसको विड्रॉ नहीं किया गया, तो उस केसेस में सेट असाइड के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगा। मतलब आपने ऑर्डर दिया, उसके बाद में आपने अपील किया, और अपील भी डिस्पोज ऑफ हो गई, अपील विड्रॉ नहीं हुई, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं उस ऑर्डर को साइड में रख दो, अब ऑर्डर को बंद करके साइड में रख दो, दूसरा ऑर्डर निकाल, नहीं, आपने अपील किया, अपील भी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद में आप उसको सेट असाइड नहीं रख सकते। और एक और प्रोविजन दे रखा है कि बिफोर सेटिंग असाइड एनी एक्स पार्टी ऑर्डर, प्रॉपर नोटिस मस्ट बी सर्व टू द ऑपोजिट पार्टी। जब भी आप एक ऑर्डर पास कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी को एक नोटिस सर्व करो कि यस वी आर गोइंग टू पास सर्टेन एंड सर्टेन ऑर्डर। इस एक्ट में चीज याद रखना, जब भी हम किसी भी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, वी हैव प्रॉपर रिस्पेक्ट फॉर the authority individual or the body on which we are applying these provisions। मतलब चाहे हम एम्प्लॉयर पे बना रहे हैं या एम्प्लॉय पे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उनको प्रॉपर नोटिस सर्व करते हैं, ताकि उस इंसान को या उस बॉडी को प्रॉपर चांस मिले अपनी बात रखने का। इन केस दे आर नॉट कंप्लाइंग विद आर नोटिस, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, देन वी कैन प्रोसीड एक्स पार्टी। बट इन जनरल केसेस वी गिव देम प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, वी गिव देम प्रॉपर chances that they perfect their wrongs or they right their wrongs। मतलब उनको पूरा मौका मिल रहा है कि अपनी बात रखो, अपनी चीजों को सही करो। हाँ, अगर आप नहीं कर रहे हो, हमारी चीजों से कंप्लाई नहीं कर रहे हो, देन वी मे प्रोसीड एक्स पार्टी। नेक्स्ट is सेक्शन 7B, रिव्यू ऑफ द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 7A। सेक्शन 7A में कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ, या फिर किसी भी तरीके का डिटर्मिनेशन हुआ, अमाउंट एप्लीकेबल या अमाउंट पेबल और एक्ट एप्लीकेबल, तो उस केसेस में रिव्यू कैसे होगा वो सेक्शन बी में दे रखा है। रिव्यू के लिए कौन रिक्वेस्ट कर सकता है? जो भी एग्रीव्ड इंडिविजुअल है, एग्रीव्ड इंडिविजुअल में रिक्वेस्ट द रिव्यू ऑफ 7A ऑर्डर इफ कोई नया एविडेंस आ गया है जो पहले अवेलेबल नहीं था, या फिर कोई मिस्टेक या एरर है रिकॉर्ड्स में, या कोई अदर सफिशिएंट रीजन जो है, उस केसेस में एग्रीड पर्सन जो है रिक्वेस्ट कर सकता है, और ऑफिसर जो चाहे वो भी सुओ मोटो रिव्यू कर सकता है 7A के ऑर्डर का। और एप्लीकेशन जो है प्रॉपर फॉर्म मैनर में या प्रॉपर जो टाइम मेंशन होगा स्कीम में, उसमें उसको अप्लाई करनी पड़ेगी। और जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप लगा दिया कि भाई नए एविडेंसेस हैं, बट
those evidences were not significant for the order now, then we can also reject the application. अगर मान लो हमने अलाउ कर दिया रिव्यू के लिए, तो पहले तुम सारी नोट पार्टीज को नोटिस देंगे दैट वी आर रिव्यूइंग द ऑर्डर, ताकि वो भी अपनी बात रखने आ सके। और अगर कोई भी न्यू एविडेंस आया है तो ये भी प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा कि पहले वो क्यों नहीं अवेलेबल था, व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर एविडेंस वाज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस इंक्वायरी। इन केस आपने अपील किया, अपील रिजेक्ट हो गई, मतलब आपने पहले तो रिव्यू किया, वो रिव्यू रिजेक्ट हो गया, कुछ नहीं कर सकते। आपने अपील की, अपील नहीं कर सकते अगर रिव्यू ऑर्डर पास रिजेक्ट हो गया है तो, मतलब अंडरस्टैंड वन थिंग, यू अप्लाइड, वी रिजेक्टेड योर ऑर्डर, वी रिजेक्टेड योर रिव्यू रिक्वेस्ट, आप अपील नहीं कर सकते किसी को भी। अगर हाँ आपने ऑर्डर पास हो गया, आपने रिव्यू रिक्वेस्ट की, रिव्यू का ऑर्डर पास हुआ, उस केस में आप अपील कर सकते हो, जैसे आप 7A ऑर्डर में अपील कर सकते थे। रिजेक्शन पे आपको कोई अपील नहीं मिलेगी, हाँ पास हो गया है रिव्यू ऑर्डर, उस केस में आप उसको अपील कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेक्शन 7C, डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट्स। मतलब अगर ऑफिसर चाहे तो कोई भी अमाउंट जो है उसको रिव्यू कर सकता है, रीओपन कर सकता है किसी केस को, रीडिटरमाइन कर सकता है। अगर उसको लगता है कि यार जो एम्प्लॉयर जो था ना, उसने कुछ तो प्रॉब्लम थी उसमें, कुछ कोई अमाउंट को ऑमिट किया या कोई फॉल्सली डिस्क्लोज किया था, कोई मटेरियल फैक्ट्स प्रॉपर्ली नहीं आए थे, उस केस में या ऑफिसर को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं यार ये बहुत सारे इश्यूज थे इस एक्ट के अंदर में, लेकिन वो प्रॉपर्ली नहीं दिखे हम ड्यूरिंग द इंक्वायरी, तो उस केसेस में ऑफिसर जो है उस केस को रीओपन करके वापस नई अमाउंट को भी रिडिटरमाइन कर सकता है। लेकिन एक ये है कि अगर 7A और 7B का ऑर्डर पास हो गया है तो उस केस में विद इन 5 years ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ना, तब तक ही हम केस को रीओपन या रीडिटरमाइन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। और रीओपनिंग के टाइम पे भी हमको एम्प्लॉयर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपना वापस केस प्रेजेंट करें, अपनी बात प्रेजेंट करें, उसके बाद ही हम अपना नया ऑर्डर पास करेंगे। अब बात आती है ट्रिब्यूनल की, जब हम अपील करेंगे ट्रिब्यूनल में केस जाएगा ना, तो वो क्या होगा ट्रिब्यूनल, तो एक ट्रिब्यूनल है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो बनता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। तो जो भी वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है ना, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में बना है, वो हमारे इस एक्ट के लिए भी ट्रिब्यूनल का काम करेगा। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट शैल एक्ट एज अ ट्रिब्यूनल अंडर दिस ईपीएफ एक्ट आल्सो। ठीक है, दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रिब्यूनल पूछे तो कौन सा ट्रिब्यूनल होगा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मेंशन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। कई बार जैसे जो इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर है, जैसे कोई सेक्शन है जिसमें वन लाइनर कोई चीज दे रखी है, एक फैक्ट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई बार जहाँ पे थोड़े से डिफिकल्ट प्रोविजंस होते हैं, कैलकुलेशन वाले थे, वो भी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ पे चीजें एक्सप्लेन कर रखी ना, इसके भी ये पावर्स है, ये पावर्स है, तो जनरली वो नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो आपको समझ में आ जाएगा एक बार पढ़ने से। लेकिन ये जो टिपिकल चीजें होती हैं, आपको पूछेंगे ट्रिब्यूनल कौन सा, शायद प्रीवियस में क्वेश्चन भी आ रखा है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है या ट्रिब्यूनल जो है उनमें से कौन सा है जो ईपीएफ एक्ट में एप्लीकेबल है, उसका आंसर जो था इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल था। तो ऐसे क्वेश्चन आप तैयार करें। जैसे अपील्स टू ट्रिब्यूनल, अब आपको कोई नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन से मैटर्स को आप अपील कर सकते हो, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन कोई नहीं पूछता आपको, लेकिन हाँ जैसे यहाँ पे ट्रिब्यूनल दे रखा है, या जो एस्केप्ड अमाउंट है, कितने साल में आप रीओपन हो सकता है केस, वो सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल जो है अपने प्रोसीजर्स खुद रेगुलेट करता है, और इसके पावर्स जो है वो जुडिशियल पावर्स जो होते हैं, सिमिलर पावर्स इसके पास होते हैं अंडर द आईपीसी, सीआरपीसी, सिविल कोड। पावर्स जो होते हैं सिमिलर, इसके पास भी सेम पावर्स रहते हैं। रिप्रेजेंटेशन बिफोर ट्रिब्यूनल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो अपीलेंट है, जो भी अपील कर रहा है, वो चाहे तो खुद आ सकता है, इन पर्सन आ सकता है, या फिर लीगल प्रैक्टिशनर के साथ में आ सकता है। बहुत सारी एक्ट्स जो हैं हमारी गवर्नमेंट की, उसमें लीगल प्रैक्टिशनर अलाउड नहीं है, मीन्स दैट यू कैन नॉट कैरी अ लीगल प्रैक्टिशनर टू प्रेजेंट योर केस इन फ्रंट ऑफ एनी इन टू प्रेजेंट योर केस इन एनी ट्रिब्यूनल और एनी बॉडी। तो इस केस में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में आप खुद जा सकते हो, या आपका लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो आपके केस को प्रेजेंट कर सकता है। रीजन क्या है, ये एक्ट थोड़े से इसमें प्रोविजंस डिफिकल्ट है, इंडिविजुअल के लिए समझना बहुत मुश्किल है, स्कीम्स जो है उसमें डिफिकल्ट टेक्निकल चीजें हैं, तो उस केसेस में आप लीगल प्रैक्टिशनर को भी अलाउ कर सकते हो कि वो आपके केस को प्रेजेंट करे। और गवर्नमेंट जो है वो भी लीगल प्रैक्टिशनर को या जो अपने ऑफिसर्स को है उनको अपॉइंट कर सकते हैं एज प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स। मतलब अपीलेंट अपने लोग लाएगा, और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है या तो खुद के ऑफिसर्स को भेज देगी या किसी लीगल प्रैक्टिशनर को भेज देगी अपना केस लड़ने के लिए। ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल,
ऑर्डर जो है या तो वो जो भी ऑर्डर हुआ था जिसके अगेंस्ट में अपील हुई है उसको कंफर्म कर सकती है कि नहीं ऑर्डर परफेक्ट है, या उसको मॉडिफाई भी कर सकती है और उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती है, या पूरी केस को रेफर बैक कर सकती है कि जाओ अब वी आर रेफरिंग द केस बैक टू यू, रिकंसिडर दिस ऑल द फैक्ट्स एंड प्रेजेंट अ न्यू ऑर्डर। ट्रिब्यूनल जो है अगर मान लो उससे कोई ऑर्डर पास हुआ और उससे कोई गलती हुई उस ऑर्डर में, तो उस केस में भी 5 साल के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल भी अपने ऑर्डर को 5 साल में अमेंड कर सकती है। अगर अमेंडमेंट में एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बढ़ रही है, मतलब एम्प्लॉयर से मान लो पिछले पहले 100 रुपये मांग रहे थे, अभी 200 रुपये मांगने हैं, तो उस केस में आपको प्रायर नोटिस भी देना होगा एम्प्लॉयर को, उसको अपॉर्चुनिटी भी देनी होगी कि वो भी अपनी बात रखे। और जो भी कॉपीज होती है ऑर्डर की सारी पार्टीज को भेजी जाती है, और एक बार ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास हो गया ना, तो उसके बाद में आप किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है इस केस में वो फाइनल अथॉरिटी है फॉर ऑल द डिसिप्लिन एंड ऑल द ऑर्डर्स। नेक्स्ट 7 ऑन डिपॉजिट ऑन फाइलिंग अपील। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना। 5 years का प्रोविजन यहाँ पे ऊपर, 5 years का कौन कौन अपील कर सकता है या अपियर हो सकता है बिफोर अ ट्रिब्यूनल। डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर जो है अगर वो अपील फाइल करना है अंडर सेक्शन ए, मतलब उसको कोई ऑर्डर मजा नहीं आया, उसको लगा कि जो अमाउंट डिटरमाइन की है वो सही नहीं है, तो अब उसको अपील फाइल करनी है। तो अपील फाइल करने से पहले उसको जितना अमाउंट डिटरमाइन हुआ ना उसका 75% डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपील करना चाहते हो ना, 75% दे दो, वरना क्या होगा, हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आया, आपको चीज़ों को डिले करना है, तो इसलिए आपने अपील फाइल कर दी ताकि चीज़ें और डिले हो जाए। नहीं, एक्ट क्या बोलती है, आप 75% डिपॉजिट करवा दो, 25% का हम बाद में देख लेंगे आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर। और ट्रिब्यूनल चाहे तो इस अमाउंट को वेव भी कर सकता है कि नहीं जमा करवाने की जरूरत नहीं है, रिड्यूस भी कर सकता है कि आप कम अमाउंट जमा करवा सकते हो, लेकिन उसको रीजंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्रॉपरली। नेक्स्ट सेक्शन 7 के इंटरेस्ट पेबल बाय द एम्प्लॉयज। अगर मान लो एम्प्लॉयर जो है वो पैसा नहीं दे रहा है, जैसे 75% नहीं दे रहा है या 25% बाद में देगा, जब भी देगा ना वो पैसा, तो जिस दिन ड्यू डेट है ना उसके बाद से जिस दिन उसने पेमेंट किया उस पूरे ड्यूरेशन का उसको 12% पर एनम या उससे हायर रेट पे सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है शेल नॉट एक्सीड द लैंडिंग रेट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स, मतलब 12% या उससे ज़्यादा जो भी शेड्यूल्ड बैंक की जो लैंडिंग रेट है उस लेवल पे उसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर उसने डिले किया पेमेंट करने से। नेक्स्ट इज सेक्शन 8, मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। आप पैसा कैसे रिकवर करोगे, आपने पैसा डिसाइड तो कर लिया, डिटरमाइन तो कर लिया, लेकिन रिकवरी भी तो करनी है ना। आप पैसा भी है, इंटरेस्ट भी, सब डिटर्मिनेशन हो चुका है, रिकवरी कैसे होगा। पहला, आप किस चीज का पैसा रिकवर कर सकते हो, अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था ईपीएफ इंश्योरेंस फंड में और वो उसने पे नहीं किया, वो आप रिकवर कर सकते हो। आपने कोई डैमेजेस थे सेक्शन 14B के अंदर में, सेक्शन 14B हम देखेंगे, वो डैमेजेस उसके द्वारा पेएबल थे लेकिन उसने पे नहीं किया, वो कर सकते हो। कोई भी सेक्शन 15(2) या 17(5) में कोई एक्यूमुलेशंस थे, वो है, वो उसने पे नहीं किए, तो वो आप कर सकते हो। या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस थे सेक्ट के अंडर में या रिलेटेड स्कीम्स के अंडर में, उसने पे नहीं किए, तो वो भी आप रिकवर कर सकते हो। इवन इन केस ऑफ एग्जेप्टेड एस्टेब्लिशमेंट ना, वहां पे भी कुछ पैसा बाकी है, तो वहां पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। और कोई भी अमाउंट है, मतलब इसके अलावा कोई भी एरियर्स है वगैरह है, वो सारे के सारे अमाउंट रिकवरेबल होंगे, और उसके लिए प्रॉपर प्रोविजंस दे रखे हैं सेक्शन 8B टू सेक्शन 8G। अब रिकवरी कैसे हो रही है वो सारा प्रोविजंस हम देख रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन 8 है रिकवरी ऑफ मनी बाय एम्प्लॉयर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर मान लो कुछ पैसा है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्टर से बाकी, अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर का कुछ पैसा बाकी है कॉन्ट्रैक्टर से, तो एम्प्लॉयर जो है कॉन्ट्रैक्टर से पैसा रिकवर कर सकता है, चाहे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन खुद का हो या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो। हमने क्या बात की, अगर कोई भी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगा है, तो उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉयर की पैसा देने की, लेकिन एम्प्लॉयर खुद से नहीं देगा। नाउ ही विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर एंड विल डिपॉजिट द मनी टू द प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। सेम फॉर द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का भी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी काटा जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड इट इज डिपॉजिटेड टू द पीएफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो एम्प्लॉयर जो है कॉन्ट्रैक्टर से ये दोनों के कंट्रीब्यूशन के पैसे ले सकता है, और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वगैरह जो भी हैं वो भी उससे कलेक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, मान लो उसका कुछ पैसा बाकी है, या तो सीधा सीधा दे दे वो कॉन्ट्रैक्टर, फर्स्ट थिंग। अगर मान लो उसका कुछ पैसा बाकी है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्टर से, मतलब पेमेंट करना बाकी है, तो उसे डिडक्ट करके दे देगा कि भाई उतना पैसा था, डिपॉजिट करना था,
वो मैंने डिडक्ट कर दिया है, बाकी पैसा तू रख ले। या फिर अगर कुछ भी पैसा बाकी नहीं है, देन ही विल क्रिएट अ डेट विच इज पेबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर। मतलब एक उधार की तरह उससे पैसा रखेगा और वो उसका पैसा उसके बिहाफ में एम्प्लॉयर डिपॉजिट कर देगा, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एम्प्लॉयर की। कॉन्ट्रैक्टर दे या ना दे, एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करना ही है। रिकवरी बाय कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को भी तो एम्प्लॉय से पैसा लेना है ना, तो एम्प्लॉयज से वो सिर्फ एम्प्लॉयज की कंट्रीब्यूशन ले सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो उसे खुद को देना है। जितना एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का पैसा है वो उससे डिडक्ट कर सकता है। कितना होता है? उनके बेसिक वेज से डिडक्ट कर सकता है, डियरनेस अलाउंस से डिडक्ट कर सकता है, रिटेनिंग अलाउंस से डिडक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं कर सकता फ्रॉम एम्प्लॉयज, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं वो भी डिडक्ट नहीं कर सकता, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एम्प्लॉयर की होती है या कॉन्ट्रैक्टर की होगी इस केस के अंदर। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख भी दिया ना तुमने कि हम डिडक्ट करेंगे, फिर भी आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन ही डिडक्ट कर सकते हैं उसके वेजेस, डियरनेस अलाउंस या रिटेनिंग अलाउंस से। नेक्स्ट सेक्शन 8B, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट टू द रिकवरी ऑफिसर। अब आपको पैसा डिडक्ट कलेक्ट करना है, ठीक है। अभी हमने ऊपर बात की कि हमारा पैसा ड्यू हो गया, इंटरेस्ट भी ड्यू होगा प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो पैसा रिकवर कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर की तो बात कर ली, लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो पैसा रिकवर कैसे करेगी? तो हम एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। कोई भी सेक्शन 8 में कोई भी एरियर्स है हमारे, तो हम उसके लिए एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो कौन इशू करेगा? एक ऑथराइज्ड ऑफिसर, कोई भी हो सकता है। आप हो सकते हो, एपीएफ से ईओए हो सकता है, एपीएफ से हो सकता है, कोई भी आरसी हो सकता है, या कोई भी सीपीएफ से हो सकता है। वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसको बोलते हैं रिकवरी सर्टिफिकेट। किसके पास जाएगा? रिकवरी ऑफिसर के पास। दे विल इशू, ऑथराइज्ड ऑफिसर विल इशू अ सर्टिफिकेट टू द रिकवरी ऑफिसर, और उसके अंदर प्रॉपर्ली अमाउंट लिखा होता है कि कितना एरियर का अमाउंट है जिसको रिकवर करना है। रिकवरी ऑफिसर जो है जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके पास पावर आ जाएगी टू रिकवर द अमाउंट, एंड ही विल प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट और एम्प्लॉय। अब रिकवरी ऑफिसर रिकवर कैसे करेगा ड्यूज को? वो किसी भी एम्प्लॉयर या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको अटैच या सेल कर सकता है, मतलब उसका अटैचमेंट करके उसको सेल कर सकता है, या एम्प्लॉयर को खुद को जेल में डाल सकता है, उसको अरेस्ट करके डिटेन कर सकता है, या फिर अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उसको रिसीव करने के लिए वहाँ, मतलब मान लो प्रॉपर्टी में पैसा है, तो वहाँ से पैसा रिकवर हो सके, मैनेज हो सके, देन ही कैन अपॉइंट अ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब उसको वहाँ बिठा के वहाँ से पैसा धीरे धीरे रिकवर करेगा प्रॉपर्टीज को मैनेज कर करके। तीनों तरीके से वो पैसा रिकवर कर सकता है रिकवरी ऑफिसर। इसमें कुछ प्रायोरिटी है। अगर मान लो कोई स्टेब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी है, तो पहले आप उसको अटैच करो, वहां से पैसा रिकवर करने की कोशिश करो। वहां से नहीं होता है तब फिर एम्प्लॉयर की पर्सनल प्रॉपर्टी की तरफ जाओ। पहले उसकी जो प्रोफेशनल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करो, नहीं होता तो फिर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरफ जाओ। कंकरेंट रिकवरीज भी हो सकती है। मान लो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर रिकवरी ऑफिसर है, उसके जुरिस्डिक्शन में कुछ पैसा है, लेकिन पता है कि उस जुरिस्डिक्शन से सारा पैसा नहीं आ सकता, बहुत ज़्यादा पैसा बाकी है। तो मान लो कोई और प्रॉपर्टीज भी है उस एस्टेब्लिशमेंट की किसी और जुरिस्डिक्शन में, तो वहाँ के रिकवरी ऑफिसर को भी आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो, फिर वो भी रिकवरी चालू कर सकता है। मतलब कंकरेंट रिकवरीज चल सकती है फ्रॉम एन पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट और एम्प्लॉयर जिससे पैसा ड्यू है। नेक्स्ट सेक्शन 8C, रिकवरी ऑफिसर टू होम सर्टिफिकेट इज टू बी फॉरवर्डेड। कई बार मैंने अभी बात की कि हो सकता है एक जुरिस्डिक्शन में सारा काम नहीं हो सकता ना, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो कि उस स्टेब्लिशमेंट की जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज है ना, जहाँ से आपको पैसा रिकवर करवाना है, तो वहाँ पे आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो। तो सर्टिफिकेट दो लोग इशू कर सकते हैं। पहला तो ऑथराइज ऑफिसर एक नया सर्टिफिकेट इशू कर दे, नहीं है तो जो रिकवरी ऑफिसर जो है ना, वो दूसरे सेकंड रिकवरी ऑफिसर को सर्टिफिकेट को फॉरवर्ड करते, उसकी कॉपी को फॉरवर्ड करते, तो उसको भी एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा, कि मतलब वो सेकंड ऑफिसर जो है उसको एम्पावर कर देगा कि आप भी रिकवर कर सकते हो, जैसे किसी ऑथराइज ऑफिसर ने वो इशू किया हो। मतलब या तो डायरेक्टली इशू कर दे ऑथराइज ऑफिसर, या जो फर्स्ट रिकवरी ऑफिसर उसको लग रहा है कि यार यहाँ से पैसा कवर नहीं हो सकता, लेकिन सेकंड जुरिस्डिक्शन में उसकी प्रॉपर्टी है, वहां से पैसा आ सकता है, तो दूसरे ऑफिसर को भी वो सर्टिफिकेट फॉरवर्ड कर देगा, उसको भी ऐसा माना जाएगा जैसे डायरेक्टली सेंड किया गया बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर। सिंपल चीज है। नेक्स्ट इज सेक्शन 80, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट देयर ऑफ। एक बार सर्टिफिकेट इशू हो गया ना, फिर एम्प्लॉयर डिस्प्यूट ही नहीं कर सकता कि भाई उसमें आपने पैसा सही नहीं लिखा है, इतना रिकवरी बाकी नहीं है, उतनी। एक बार हो गया हो गया। एक बार रिकवरी ऑफिसर को सर्टिफिकेट मिल गया, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता, वो जितना अमाउंट लिखा उतना रिकवर करेगा, और एम्प्लॉयर के पास पावर नहीं है कि आप उसको
डिस्प्यूट करोगे करेक्ट नहीं है अमाउंट, या फिर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करो इन फ्रंट ऑफ द रिकवरी ऑफिसर। रिकवरी ऑफिसर का पावर क्या है? उसको जाना है, रिकवर करना है। हाँ, लेकिन ऑथोराइज ऑफिसर जो था, जिसने ये सर्टिफिकेट इश्यू किया था, वो चाहे तो सर्टिफिकेट को विड्रॉ कर सकता है, या उसमें कोई भी मिस्टेक्स हैं जो क्लैरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक्स हो गई है, गलती से हो गई है, उसको करेक्ट कर सकता है। और जो भी विड्रॉल, करेक्शन या अमेंडमेंट जो भी है, उसको इन्फॉर्म कर देगा रिकवरी ऑफिसर को, और रिकवरी ऑफिसर अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेगा। सेक्शन 80, स्टे अमेंडमेंट और विड्रॉल ऑफ द रिकवरी सर्टिफिकेट। देखो, अगर आपने सर्टिफिकेट इशू किया लेकिन एम्प्लॉयर आएगा, नहीं साहब मेरे को टाइम दो, आई कैन पे यू बैक, डोंट अटैच माई प्रॉपर्टी, आई विल पे यू बैक, देन ऑथोराइज ऑफिसर हैज द पावर टू ग्रांट टाइम फॉर पेमेंट, कि हाँ यार टाइम दे दिया, और उस समय तक रिकवरी ऑफिसर को बोल दिया कि उस समय तक आप प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दो। जब भी पैसा आता है, अगर मान लो कुछ पैसा वो जमा करवा देता है, तो वो ऑफिसर जो है, ऑथोराइज ऑफिसर, इन्फॉर्म कर देगा रिकवरी ऑफिसर को, हाँ इतना पेमेंट हो गया, या फिर इतना टाइम हमने एक्सटेंड किया है कि भाई अभी उसको पैसा देने के लिए, आफ्टर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट। तो अगर मान लो उसने कोई अपील कर दी, उस इंडिविजुअल ने अपील कर दी, एम्प्लॉयर ने, तो अपील में उसका पैसा कम हो गया है, तो उस समय भी रिकवरी को स्टे किया जा सकता है फॉर द रिड्यूस पोर्शन, मतलब जितना पैसा कम किया उतनी की रिकवरी आप रोक दो, बाकी रिकवरी आप कंटिन्यू रखो। और एक बार डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा, तो ऑफिसर जो है उस समय सर्टिफिकेट को भी अमेंड कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। मतलब बेसिक चीज़ है यार, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आप इन्फॉर्म कर दो, रिकवरी उसी हिसाब से हो जाएगी। लेकिन जब तक आप इन्फॉर्म नहीं करते हो, फिर रिकवरी ऑफिसर के पास पूरा पावर है कि वो पैसा रिकवर करेगा। व्हाट आर द अदर मोड्स ऑफ रिकवरी? प्रॉपर्टी तो है ये सब कुछ, लेकिन और क्या तरीके हैं जिससे हम पैसा रिकवरी कर सकते हैं? रिकवरी ऑफ अमाउंट्स पेबल टू द एम्प्लॉयर। अगर मान लो कि एम्प्लॉयर से पैसा बाकी है, पहले तो हम प्रॉपर्टीज अटैच कर लेंगे, वहां से नहीं हो पाया तो और क्या तरीका है? अगर मान लो कोई और इंडिविजुअल है जिसको एम्प्लॉयर को पैसा देना था, तो आपने उसको भेज दिया नोटिस कि अब तू पैसा हमको देगा। Any person owing money to the defaulting employer can be directed to deduct arrears and pay to the EPFO। मतलब मान लो कि ए इज द एम्प्लॉयर, लेकिन बी को एम्प्लॉयर को कुछ पैसा देना था, तो ईपीएफओ सीधे बी के पास जाएगी, उसको बोलेगी कि हमारा इतना पैसा बाकी है, डिडक्ट कर, हमको दे दे, तेरे को अब एम्प्लॉयर को देने की जरूरत नहीं है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर्स। ठीक है। अब मान लो कोई थर्ड पार्टी है जो ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर पैसा होल्ड कर रही है ना, चाहे जॉइंट अकाउंट में हो सकता है या किसी भी तरीके से पैसा होल्ड कर रही है। तो मान लो कि दो लोग हैं, दो पार्टनर्स हैं, एक एम्प्लॉयर से पैसा बाकी है हमारे, ठीक है, तो उसका किसी और कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप है, उनका कोई जॉइंट अकाउंट है, तो वो जॉइंट अकाउंट होल्डर को बोल देगी ये पैसा तुझे हमको देना है, तो उसको नहीं देगा। एट मीन्स हम थर्ड पार्टी से भी पैसा ले सकते हैं, और उसके बाद में कोई भी प्रॉपर्टी पे क्लेम्स जो होंगे वॉइड होंगे। मतलब प्लस क्योंकि हमने क्लेम कर दी, ईपीएफओ ने क्लेम कर दिया ना, तो मतलब ईपीएफओ क्लेम को प्रायोरिटी होगी। उसके बाद में कोई भी क्लेम करने आता ना, तो उसको वैलिड नहीं होगी। हमने क्लेम कर दिया, हम प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, पहले हमारा पैसा सेटल होगा, उसके बाद में किसी और का होगा। अगर मान लो इफ रिसिपेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन नोट, मतलब जिसको नोटिस दे रहे हैं हम कि भाई तू पैसा डायरेक्टली एम्प्लॉयर को नहीं देगा, हमको देगा, वो बोलता है कि नहीं साहब हमारा कोई पैसा बाकी नहीं है, हमारे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो उस केसेस के अंदर में अगर हमको लगता है एविडेंस से हाँ इसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, देन वी विल नॉट मेक हिम पे टू अस। और अगर मान लो वो झूठ बोलता है कि नहीं नहीं हमारा कोई पैसा नहीं है, और फॉल्स स्टेटमेंट्स देता है, तो उसको जितनी लाइबिलिटी एम्प्लॉयर की थी उतना देना पड़ेगा, या जितने एम्प्लॉयर के ड्यूज है जितना जो भी लेस होगा उसको देना ही पड़ेगा। मतलब फॉल्स होगा तो आपको पैसा देना ही है, अगर आप सच से निकल जाते हैं तो ठीक है यार, फ्री टू गो, नथिंग दैट मच इंपॉर्टेंट। मतलब बेसिक चीज है यार, एम्प्लॉयर से पैसा नहीं आया तो हम या तो कोई उससे मांगता है, मतलब वो किसी से मांगता है तो मुझसे पैसा ले लेंगे, या फिर कहीं कोई इंसान जो है उसके बिहाफ पे पैसा होल्ड करके रख रहा है तो हम उससे पैसा ले लेंगे। दिस इज इट। नेक्स्ट इज सेक्शन 8 जी, एप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजंस। जो सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में इनकम टैक्स एक्ट में वो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, आपको कोई नहीं पूछ रहा कि इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस क्या है। सेक्शन 9, रिकॉग्निशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो भी प्रोविडेंट फंड है ना, वो यूज होता है एज अ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इनकम टैक्स में रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के कुछ प्रोविजंस है। जो ये प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, उसको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड माना जाता है, और उस केसेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उस कुछ एग्जाम्पशंस भी आपको मिलते हैं फ्रॉम दी टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट सेक्शन 10, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट। अगर मान लो
if there is any amount standing to the credit of any member in the fund or exempted employee in the provident fund, अगर उस अकाउंट में कुछ भी पैसा पड़ा है ना, ईपीएफ के पैसा पड़ा है, उसको कोई भी टच नहीं कर सकता, असाइन नहीं कर सकता। मतलब मान लो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उससे कुछ लोग पैसा मांग रहे हैं, कोई भी इंसान पैसा मांग रहा है, तो सीधी सी बात है कि उसके पास पावर होते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज को अटैच करके वो पैसे को रिकवर करे। लेकिन अगर कुछ भी पैसा एम्प्लॉय का जो है प्रोविडेंट फंड में पड़ा है ना, तो इसको टच भी नहीं कर सकता। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी असाइंड, इट कैन नॉट बी चार्ज। कोई भी कोर्ट की डिग्री हो कि डेट है, लाइबिलिटी, कोर्ट बोल दे उसकी प्रॉपर्टीज को अटैच करो, सारी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। लेकिन जो ईपीएफ का पैसा है वो अटैच नहीं हो सकता, वो प्रॉपर्ली सेफ है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट, चाहे वो इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं हो गया हो, तो भी उसका ये जो पैसा है वो हमेशा सेफ रहेगा, क्योंकि वो उसकी लाइफ की सेफ्टी के लिए, उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, तो ये पैसा हमेशा सेफ रहेगा, चाहे उसकी अदर लाइफ में कोई भी चीजें हो रही हो। इसको किसी भी तरीके से, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर से, इंसॉल्वेंसी कोई बॉडी है उसके, वो अटैच नहीं कर सकते। अगर मान लो डेथ हो जाती है किसी इंडिविजुअल की और वो पैसा नॉमिनी को जाना है, तो नॉमिनी को भी जो पैसा जाएगा ना, अगर मान लो कि कुछ इंडिविजुअल की डेथ से पहले उसका कुछ पैसा बाकी था किसी से, उसकी खुद की कोई लाइबिलिटी थी, तो भी वो पैसा अटैच नहीं होगा, चाहे उसकी डेथ क्यों नहीं होगी, वो पैसा नॉमिनी को जाएगा फ्रॉम डेट फ्री, चाहे नॉमिनी की खुद की लाइबिलिटी बाकी क्यों नहीं। मान लो कि नॉमिनी से खुद से 9-10 लाख मांग रहे हैं, लेकिन उसको कुछ मिल रहा है पैसा ना फ्रॉम समवन, सम फैमिली मेंबर्स प्रोविडेंट फंड अकाउंट ना, तो वो भी फ्री होगा। मतलब कोई भी कोर्ट इस पैसे को चाहे बिफोर डेथ चाहे आफ्टर डेथ अटैच नहीं कर सकती। सेम पेंशन स्कीम का पैसा है वो भी प्रोटेक्टेड है, और इंश्योरेंस स्कीम का पैसा है वो भी प्रोटेक्टेड है, चाहे प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम, तीनों के पैसे जो है प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट और असाइनमेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 11, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ ईपीएफ ड्यूज ओवर अदर डेट्स। अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है या उसकी कंपनी जो है वाइंड अप हो रही है, तो अगर उसके कुछ भी ड्यूज हैं ईपीएफ एक्ट के अंडर में बाकी है, तो पहले उसको पेमेंट करना है, बाकी पेमेंट बाद में होना। ड्यूज क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी कंट्रीब्यूशन बाकी था टू प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस फंड, कोई भी सेक्शन 14B के डैमेजेस बाकी हैं, कोई भी चार्जेस थे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वो बाकी है, कोई भी ट्रांसफर्स थे सेक्शन 15(2) या 17(5) के वो बाकी है, वो पहले आपको ईपीएफ एक्ट का पैसा देना पड़ेगा, बाकी आप बाकियों को बाद में देंगे। कहाँ कहाँ पे, चाहे वो रेगुलर ईपीएफ कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट है चाहे एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट है, दोनों में से किसी का भी पैसा बाकी होगा, वो पैसा पहले प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को देना है, बाकी आप बाद में देंगे। एनी अमाउंट ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज डिडक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब मान लो कि एम्प्लॉय का पैसा आपने काट दिया है, आपने अभी तक पे नहीं किया है, लेकिन आपके ऊपर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हो गई, तो वो फर्स्ट चार्ज करेंगे हम, इज ट्रीटेड एज फर्स्ट चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहला हम देंगे, हमको पैसा देना पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा। बाकी लोग, कोई भी लोग क्या बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई और क्या डेट है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार एम्प्लॉय का पैसा ना, आपने उस गरीब इंसान का पैसा ले रखा है, उसकी गरीब इंसान की ड्यू है, जिसकी सोशल सिक्योरिटी उस पर डिपेंडेंट है, फिर उसका भविष्य उस पर डिपेंडेंट है, तो जीवन उस पर डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले पैसा जो है प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन लेके जाएगी रिगार्डिंग ऑल द ड्यूज फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। उसके बाद में जिसको लेके जाना लेके जाओ, बचे तो आप ले जाओ, नहीं है तो मजे करो। नेक्स्ट इज सेक्शन 12, प्रोहिबिशन ऑन वेजेस रिडक्शन। मतलब अ, मान लो कि कुछ जैसे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के बाद में आपको पैसा देना पड़ता है, मतलब 15,000 पेजेस पे आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है अप टू 15,000 पे। आपने जस्ट बिकॉज आपको कंट्रीब्यूशन कम देना पड़े ना, आपने उसकी वेजेस को 10,000 ही कर दिया, यार नहीं तेरे को 10,000 मिलेंगे क्योंकि 15,000 पे मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है, अब मैं 12%, 15,000 पे देना पड़ रहा था, अब मैं 10,000 पे दूंगा या 8,000 पे दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन कम करने के लिए पैसा नहीं कर सकते, आपको चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं इस एक्ट के अंडर में, उस चक्कर में आप पैसा नहीं कर सकते कम। या कोई भी तरीके का बेनिफिट है, पेंशन बेनिफिट, ग्रेजुएट बेनिफिट, पीएफ, लाइफ इंश्योरेंस की भी जो बेनिफिट्स है, आप उसको इस बेसिस पे कम नहीं करोगे ताकि आपको कंट्रीब्यूशन कम देना पड़ जाए या चार्जेस कम करना। आप कोई और रीजन है, मान लो कि भाई वो बंदा काम ही नहीं करता अच्छे से, उस बेसिस पे आपने कम कर दिया, दैट्स फाइन। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको कंट्रीब्यूशन या चार्जेस कम पे करने पड़े, उस बेसिस पे आप पेमेंट को कम नहीं कर सकते। सेक्शन 13, इंस्पेक्टर्स। इस सेक्ट में इंस्पेक्टर कौन होता है, जो ईओ होता है उसको हम इंस्पेक्टर बोलते हैं। जो ईओ अकाउंट ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है, उसको हम जनरली इंस्पेक्टर बोला जाता है इन नॉर्मल लैंग्वेजेस, और उसके पास सारे इंस्पेक्टर्स के पावर्स है अंडर दिस एक्ट।
The appropriate government may appoint an inspectors and he can be inspected for the purpose of EPF Act, EPF scheme, pension scheme and insurance schemes. That means इस एक्ट के कोई भी प्रोविजंस है वो अप्लाई करने के लिए, वो सारे रेगुलेशंस जो है फॉलो करने के लिए आप किसी इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। आप मीन्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है, उनका प्रॉपर जुरिस्डिक्शंस डिफाइन कर सकती है। पावर्स क्या क्या इंस्पेक्टर्स के पास में, कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है कि नहीं उसको चेक कर सकता है, कोई भी कंप्लाइंसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उस कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट में वो चेक कर सकता है, कि ये एक्ट जो है एप्लीकेबल है या नहीं अदर एस्टेब्लिशमेंट में वो चेक कर सकता है। बाकी जो मतलब जो भी इस एक्ट के प्रोविजंस है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको ये इंश्योर कर सकता है कि वो प्रॉपरली फॉलो हो, और उसके रिगार्डिंग कोई भी चेक्स है वो कर सकता है। साथ में इंस्पेक्टर्स के पास पावर है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ले सकता है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट को सर्च करना है, एंटर करना है, किसी भी रीजनेबल टाइम में कोई रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना है तो वो कर सकता है। किसी भी एग्जामिनर एम्प्लॉयर को, कॉन्ट्रैक्टर को, एजेंट को, सर्वेंट को, एनी रिलेवेंट पर्सन को एग्जामिन कर सकता है, किसी भी कॉपीज डॉक्यूमेंट जो उसको सीज कर सकता है, उसकी कॉपीज बना सकता है। जो भी पावर्स चाहिए उसको कि ये एक्ट जो है प्रॉपरली एप्लीकेबल हो, उसके लिए वो पावर्स को एनफोर्स कर सकता है। साथ में उसको पेंशन स्कीम्स के भी पावर मिलते हैं, सर्च एंड सीजर के भी पावर मिलते हैं अंडर द सीआरपीसी एक्ट 1898। तो जो भी पावर्स एक इंस्पेक्टर के पास होते हैं बाकी सारी एक्ट के अंदर में सिमिलर पावर्स इस इंस्पेक्टर के पास भी होते हैं अंडर द ईपीएफ एक्ट 1952। नेक्स्ट इज पेनल्टीज। अगर मान लो आप कुछ भी गलतियां कर रहे हो तो उस केसेस में आपके ऊपर पेनल्टीज क्या क्या लग रही है वो सेक्शन 14 में मेंशन्ड है। अगर आप कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट देते हो या कोई भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन करते हो ताकि पैसा ना देना पड़े, मतलब जनरली एम्प्लॉयज करते हैं ऐसा, तो उनको पैसा ना देना पड़े, तो अगर आप ऐसा कोई फॉल्स स्टेटमेंट देते हो तो अप टू 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, अप टू 5,000 फाइन हो सकता है, या दोनों चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। मान लो आपने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, कौन कौन सी डिफॉल्ट है, अगर मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन तो काट दिया लेकिन पेमेंट ही नहीं किया, आपने एम्प्लॉय से पैसा काट के दे दिया लेकिन आप कॉन्ट्रीब्यूट आगे पीएफ ऑर्गेनाइजेशन को आपने पैसा पहुंचाया नहीं, तो आपको 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 10,000 तक का फाइन होगा। मिनिमम 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम 10,000 ऑफ फाइन हो सकता है। अगर मान लो कि आपने कोई और अदर डिफॉल्ट कर दिया तो आपको 6 मंथ तक इम्प्रिजनमेंट या 5,000 तक का फाइन होगी। मतलब आपने खुद का पैसा नहीं जमा कराया तो 6 महीने की हो गया, और आपने एम्प्लॉय से डिडक्ट करके फिर पैसा जमा नहीं करवाए तो आपको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट या 10,000 का फाइन हो सकता है। कॉन्ट्रवेशन ऑफ एनी अदर स्कीम प्रोविजंस, आप ईपीएफ स्कीम, पेंशन स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम से कोई और प्रोविजंस है जिसके ऊपर स्पेसिफिक पेनल्टीज नहीं है, वो आप अगर करते हो, कॉन्ट्रवेन करते हो, तो आपको अप टू 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 4,000 ऑफ फाइन या दोनों हो सकते हैं। और कोई भी जो डिफॉल्ट है कहीं और मेंशन ही नहीं है तो इस केस में आपको 1 to 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट या 5,000 ऑफ फाइन या दोनों हो सकते हैं। सो फाइन्स आर जनरली नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम्स, बट स्टिल बेसिक चीजें हैं कि अगर आप एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन खा जाता है एम्प्लॉयर, तो उस केस में 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 10,000 तक का फाइन हो सकता है। फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो 1 ईयर और 5,000 का फाइन हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 14 ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। कंपनीज अगर ऑफेंस कर रही है तो उस केस में कौन लायबल है। अगर इंडिविजुअल एम्प्लॉयर कर रहा है तो पता है कि यार इसने गलती की, उसको पकड़ लो, लेकिन ऑफेंसेस कंपनी ने किया है, कंपनी इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन ना, कंपनी में लाइबिलिटी कंपनी की होती है, इंडिविजुअल की तो होती नहीं है। उस केसेस में भी हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंश्योर करनी है ना, तो उस केसेस के अंदर रिस्पॉन्सिबल इंसान कौन होगा। इफ द ऑफेंसेस हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी ना, all the person who are in charge or responsible for the company's operation are deemed guilty। सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल है सबको हम गिल्टी मानेंगे और फिर उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलेगा और उनको पनिश किया जाएगा। अगर कोई बोल देता है डिफेंस में अपनी कि यार मेरी नॉलेज के बिना हुआ, तो प्रॉपर प्रूफ्स लाता है, या फिर बोलते हैं मैंने जो ड्यू डिलिजेंस डिलीजेंस इंश्योर की थी टू प्रिवेंट सच थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग, लेकिन चीजें हो गई तो उस केस में उसको हम फ्री कर देंगे। बाकी जो भी इंडिविजुअल है इन्वॉल्व उन सबको पनिश करेंगे। तो डायरेक्टर या ऑफिसर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी। अगर मान लो कोई भी ऑफेंस जो हुआ है उनकी कंसेंट, उनकी कन्वीनियंस या उनके नेग्लेक्ट के कारण हुआ है, तो उस केस में हम उस इंडिविजुअल को भी गिल्टी मानेंगे। और इस अगर कोई फर्म है उस केस में डायरेक्टर का मतलब हो गया कोई पार्टनर अगर फर्म का है तो हम उसको भी गिल्टी मानेंगे अगर उसकी गलती की वजह से कोई चीज होती है। सेक्शन 14 इनहेंस पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंसेस। आप एक बार कन्विक्ट हुए फिर भी आप रिपीटेडली ऑफेंसेस कर रहे हो तो मिनिमम आपको 2 साल तक की जेल, अप टू 5 ईयर्स तक की जेल हो सकती है, एंड फाइन 25,000 तक का हो सकता है। सेक्शन 14 भी सर्टेन ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल। मतलब अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया कंट्रीब्यूशन पेमेंट करने से, इफ एनी एम्प्लॉयज डिफॉल्टेड इन
कंट्रीब्यूशन पेमेंट ना, देन इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और पुलिस जो है उसको बिना वारंट के भी बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है, और कोर्ट की परमिशन के बिना भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती है। मींस अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया ना, दिस इज द पावर दैट एन इंस्पेक्टर एंड एपीएफसी हैव, कि उसको आप अरेस्ट तक कर सकते हो। सो द एक्ट गिव्स अस स्ट्रॉन्ग पावर्स टू एपीएफसी एंड ईओयू ऑफिसर्स इन द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट सेक्शन 14 AC, कॉग्निजेबल एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। कोर्ट जो है कॉग्निजेंस कब लेगा इन सारे ऑफेंसेस का? जब इंस्पेक्टर जो है एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, और इंस्पेक्टर जो भी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा उससे पहले उसको सीपीएफसी या जो भी अदर ऑथराइज ऑफिसर है, मतलब एपीएफसी से लेके ऊपर वाले जो भी ऑफिसर्स है उनके सेक्शंस लेगा, उसके बाद में एक रिटन रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा टू द कोर्ट, उसके बाद कोर्ट जो है कॉग्निजेंस ले सकता है। और इसको ट्राई कौन कर सकता है? कोई भी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, उससे हायर लेवल के जो भी कोर्ट्स हैं वही ट्रायल कर सकते हैं इन ऑफेंसेस को, इससे नीचे वाले कोर्ट्स नहीं ट्रायल कर सकते। सेक्शन 14 भी रिकवरी ऑफ डैमेजेस। रिकवरी कैसे करेंगे, क्या उसके प्रोविजन है? रिकवरी हमने मोड्स ऑफ रिकवरी हमने देख लिया, लेकिन रिकवरी ऑफ डैमेजेस क्या है उसके प्रोविजन है। अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉयर है वो डिफॉल्ट करता है इन पेइंग ऑफ कंट्रीब्यूशन, या जो भी 15(2) या 17(5) में ट्रांसफर करने थे उसमें, तो या फिर कोई भी अदर चार्जेस है, तो उस केस में अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो है डिफॉल्ट करता है, पैसा नहीं देता है, तो डैमेजेस कितनी लगेगी? डैमेजेस विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एरियर्स। ठीक है, जितनी पेनल्टी है वो शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एरियर्स, मतलब जितना अमाउंट बाकी है उतनी पेनल्टी लगा सकते हैं। ठीक है, और उसको रिकवर कैसे किया जाएगा? बाय सीपीएफसी और ऑथराइज्ड ऑफिसर्स। रिकवरी से पहले हम उसकी बात सुनेंगे, उसकी अपॉर्चुनिटी देंगे उसको बात करने की। चाहे तो अगर कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है उसके डैमेजेस को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं और वेव भी कर सकते हैं, अगर कोई बीएफआईआर के द्वारा कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम जो है सैंक्शन हुई है, मतलब कोई कंपनी है उसकी कैपेसिटी नहीं है पे करने की, उस केस में हम वेवर भी दे सकते हैं और उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। सेक्शन 14C, कोर्ट ऑर्डर्स फॉर रिकवरी। अगर कोई भी जो है इंडिविजुअल वो कन्विक्ट हो जाता है कि उसने डिफॉल्ट किया था, या ट्रांसफर्स में डिफॉल्ट किया था, या कॉन्ट्रीब्यूशन में डिफॉल्ट किया था, कोर्ट जो है उसको ऑर्डर कर देगा कि आप स्पेसिफिक टाइम में पैसा दे दो। और इस केस के अंदर में जब भी कोर्ट ने उसको टाइम दिया ना उस केस में उसको प्रोटेक्शन रहेगी कि हाँ उसके ऊपर और कोई केस नहीं चलेगा, कोई फर्दर लाइबिलिटी नहीं होगी। हाँ, कोर्ट के ऑर्डर तक आप पैसा दे दो, अगर आप नहीं देते हो तो फिर माना जाएगा कि आपने फर्दर ऑफेंस कमिट किया है। कोर्ट ने आपको दे दिया टाइम, आपने उस समय में पैसा नहीं दिया, देन इट मीन्स आपने एक बार फिर से ऑफेंस कर दिया है। फिर आपको वही तो सेक्शन 14 में इम्प्रिजनमेंट वाले प्रोविजंस थे वो लगेंगे, और 100 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको फाइन लगना स्टार्ट हो गया जिस दिन से आपने पेमेंट जो बोला था उस दिन तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो फिर आपके ऊपर 100 रुपीज पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा, और सेक्शन 14 के हिसाब से आपके फर्दर ऑफेंसेस के इम्प्रिजनमेंट लगना स्टार्ट हो जाएगी। सेक्शन 15, स्पेशल प्रोविजन फॉर एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड। अगर मान लो स्कीम से पहले ऑलरेडी कुछ प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल थे जहां से एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिल रहा है, तो जब तक वो स्कीम अप्लाई नहीं हो जाती तब तक आपको उस एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड से बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। और जिस दिन स्कीम अप्लाई हो जाएगी आपके स्टेब्लिशमेंट पे, ठीक है, मान लो 20 से कम एम्प्लॉयज थे या 20 हो गए या कोई भी और अदर रीजन से बाद में स्कीम अप्लाई होती है, तो जितना भी पैसा उस फंड में एक्यूमुलेटेड था वो ईपीएफ स्कीम में ट्रांसफर हो जाएगा, और ईपीएफ स्कीम में जो भी एम्प्लॉय का अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। सेक्शन 16 क्या बोलता है? एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट। अब कुछ एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट भी है। कौन कौन सी एग्जम्प्टेड है? पहली है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। Any cooperative society which is registered under Cooperative Act 1912 or state law, and it is employing less than 50 persons in working without the aid of power। पहला तो कोऑपरेटिव एक्ट 1912 या स्टेट लॉ में रजिस्टर्ड है, 50 से कम लोग काम करते हैं और वो बिना पावर की एड से काम करते हैं, तो उस केस में ये एक्ट जो है वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट, बाकी वाले तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देखना कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1912 एक्ट या स्टेट लॉ में रजिस्टर्ड है, 50 से कम लोग काम करते हैं और वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर है, तो उस केस में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगी। प्लस तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है
जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट द्वारा बनाएंगी किसी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम में या पेंशन स्कीम के बेनिफिट उठा रहे हैं, तो उस केस में ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी एग्जम्प्टेड हो जाएगी, अगर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट है और कोई और स्कीम से वो पैसा उठा रहे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम की गई है। प्लस कोई और एस्टेब्लिशमेंट है जो सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट एक्ट के थ्रू बनी है और उसी एक्ट के अंदर में उनको कोई और स्कीम्स बनी है, उसके बेनिफिट्स वो उठा रहे हैं और जो सिमिलर हैं और या फिर अच्छे बेनिफिट्स हैं, उस केसेस के अंदर भी उन एम्प्लॉयज से भी एग्जम्प्टेड होगी। या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो 50 से कम, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 स्टेट लॉ से रजिस्टर्ड और विदाउट द एड ऑफ पावर काम कर रही हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट है या सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट एक्ट अंडर एस्टेब्लिशमेंट बनी है, जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई बनाई हुई स्कीम्स के थ्रू उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो सारी की सारी एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट होगी, वहाँ पे ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो कोई और नोटिफिकेशन से किसी भी स्टैब्लिशमेंट को एग्जाम कर सकती है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे, सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे, प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली उनको एग्जाम कर सकती है फ्रॉम दिस एक्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन 16A, ऑथराइजेशन ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयर्स टू मेंटेन प्रोविडेंट फंड अकाउंट। मतलब गवर्नमेंट जो चाहती चाहे तो कुछ एम्प्लॉयर्स को परमिट कर सकते हैं कि आप अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हो। कौन कर सकता है ऑथराइजेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट में allow an employer to maintain PF accounts on application of employer plus majority of the employees। मतलब एप्लीकेशन किसके द्वारा की गई है? एम्प्लॉयर के द्वारा और अराउंड मोर देन 50% ऑफ द जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके द्वारा। और दूसरा प्रोविजन क्या होना चाहिए कि एम्प्लॉयर में 100 या 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, 100 से या 100 से कम है तो आपके ऊपर तो सीधी ये एक्ट एप्लीकेबल होगी, आपको यहीं पे पैसा जमा कराना है, सब कुछ करना है। लेकिन हाँ, आपके ऊपर 100 या 100 से ज्यादा वर्क जो इंडिविजुअल से काम कर रहे हैं और उसमें से मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल जो हैं आपके सपोर्ट में हैं, वो चाहते हैं कि नहीं आप अलग से एक पीएफ अकाउंट बनाओ और पिछले 3 साल में आपने किसी भी तरीके कोई डिफॉल्ट नहीं किया था या किसी भी तरीके का कोई ऑफेंसेस नहीं किए थे अंडर दिस एक्ट। मतलब पिछले 3 साल से तो आप पैसा यहाँ जमा करवा रहे होंगे और जमा करवा रहे थे तब आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है किसी भी तरीके का, और आपके पास 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी हैं, आपके मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उस केस में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट से दैट यू वांट टू मेंटेन अ सेपरेट प्रोविडेंट फंड अकाउंट। आप क्या क्या कंडीशंस आपको मीट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को? यू हैव टू मेंटेन अ पीएफ अकाउंट, यू हैव टू सबमिट रिटर्न्स, डिपॉजिट कॉन्ट्रीब्यूशंस, अलाउ इंस्पेक्शंस, मतलब हमको अलाउ करना पड़ेगा कि यार आप चीज़ें प्रॉपर्ली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं वो पे करने पड़ेंगे और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब आप सेपरेट पीएफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो लेकिन आपको ये सारे काम करने ही पड़ेंगे जस्ट लाइक अदर रेगुलर एम्प्लॉयर्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको लगता है कि यार एम्प्लॉय इज नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और कमिटिंग ऑफेंसेस, तो उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देके उसकी बात सुन के उसको लगता है कि नहीं यार ये अभी भी कंप्लाई नहीं कर रहा है इस एक्ट के प्रोविजन से, तो ऑथराइजेशन को कैंसिल भी कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 17, पावर टू एग्जम्प्ट। कौन एग्जम्प्ट कर सकता है? अगर एस्टेब्लिशमेंट माइंड एग्जम्पशन की बात करें कि एस्टेब्लिशमेंट्स को अगर एग्जम्प्ट करना है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एग्जम्प्ट कर सकती है। एग्जम्पशंस कब होगा कि जो भी पीएफ रूल्स फॉलो हो रहे हैं ना वो दे आर नॉट लेस फेवरेबल देन द सेक्शन 6, और मतलब जो हमारे रूल्स है उससे लेस फेवरेबल रूल्स नहीं होने चाहिए और बेनिफिट्स जो है हमसे कम नहीं होने चाहिए, हमसे बेटर बेनिफिट्स अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमसे अच्छे से वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मोर फेवरेबल रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तभी हम उनको एग्जम्प्ट करेंगे। या फिर जो एम्प्लॉयज जो है वो ऐसे बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स, ग्रेचुटी बेनिफिट्स इस तरीके से एंजॉय करते हैं जो हमसे अच्छे बेनिफिट्स उनको वहाँ मिल रहे हैं, उस केस में भी हम उनको एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उनको एग्जाम्प्ट कर सकती है। एग्जाम्पशन से पहले हमको सेंट्रल बोर्ड से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा और बोर्ड को भी प्रॉपर टाइम पीरियड में ये रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। मतलब एग्जाम्पशन कम होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल बोर्ड। दोनों की कंकरेंस के साथ में ये एस्टेब्लिशमेंट को एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। अब एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट में क्या उनके कंडीशंस रहेंगे? सेक्शन 6, सेक्शन 7A, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 14B जो है उनके ऊपर कंटिन्यूसली एम्प्लॉय रहेगा, चाहे आप एग्जाम्प्टेड हो चाहे आप अनएग्जाम्प्टेड हो, आपके ऊपर जो है ये सेक्शंस तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। प्लस एम्प्लॉयर जो भी एग्जाम्प्ट होंगे उसको भी अपना एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाना पड़ेगा, प्रॉपर अकाउंट सबमिट, रिटर्न्स को सबमिट करना पड़ेगा, फंड को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अकाउंट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा और परफॉर्म ड्यूटीज। ट्रांसफर का मतलब
अगर मान लो कोई इंडिविजुअल छोड़ के जा रहा है आपके इंडस्ट्री को, स्टेब्लिशमेंट को, और वो किसी और इंडस्ट्री में जा रहा है, जो चाहे तो वो भी एग्जम्प्टेड हो सकती है, वो भी अनएग्जम्प्टेड हो सकती है। एग्जम्प्टेड है तो आपको उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अनएग्जम्प्टेड है तो आपको प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो पैसा, ताकि एम्प्लॉय को है कंटिन्यूसली बेनिफिट्स मिलते रहे लाइफ टाइम। अगर मान लो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी डिफॉल्ट कर जाता है उनका, स्टेब्लिश तो कर दिया बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, लेकिन उसने वो डिफॉल्ट कर दिया, तो माना जाएगा उसने भी सेक्शन 14(2)(a) के अंदर में ऑफेंसेस किया है उस, और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के जो मेंबर्स हैं उनको लायबल किया जा सकता है फॉर पेनल्टीज। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अगर कोई और एम्प्लॉयड जो है, पेंशन स्कीम उसकी अच्छी है, अभी अपने प्रोविडेंट फंड स्कीम की बात की ना, लेकिन वो उसके पास अच्छी पेंशन स्कीम भी है जो बेटर बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है कंपेयर टू अस, देन ऑल्सो द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जाम्प्ट देम। प्रोविडेंट फंड में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट। पर्सन या क्लास वाइज के एग्जाम्पशन हो सकते हैं, इंडिविजुअल क्लासेस और पर्सन को भी एग्जाम किया जा सकता है। सिमिलरली इंश्योरेंस स्कीम में भी एग्जाम्पशन मिल सकता है, उस केस में कौन कर सकता है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। देखो पीएफ स्कीम में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सॉरी इस एक्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एक्ट और पीएफ स्कीम में, पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट, इंश्योरेंस स्कीम में सीपीएफसी, वो एग्जाम्प्ट कर सकता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट याद रखने ना, कौन किसके पास कब पावर्स है फॉर एग्जाम्पशंस। पेंशन में सेंट्रल गवर्नमेंट, इंश्योरेंस स्कीम में पीएफ कमिश्नर, एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रोविडेंट फंड में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दोनों में, एक्ट में और पेंशन फंड में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कब करेंगे, जहां पे उनको बेटर बेनिफिट्स मिल रहे हो। सिमिलरली आप पर्सन वाइज, क्लास वाइज, एस्टेब्लिशमेंट वाइज किसी भी तरीके के एग्जाम्पशंस कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट वाइज एग्जाम्पशंस जो भी होते हैं वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ही होती हैं, लेकिन पर्सन वाइज या क्लास वाइज जो है वो स्पेसिफिक, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है यहाँ पे, और इंश्योरेंस स्कीम में सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा हो रहा है। बाकी इसमें बेसिक चीज़ें हैं यार, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप कैंसिल करते हो तो फंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल जा रहा है तो आपको फंड का ट्रांसफर करना पड़ेगा, और एग्जेम्पशन को कैंसिल भी किया जा सकता है अगर आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो। सेक्शन 17 है ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स। अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल एक अनकवर्ड स्टेब्लिशमेंट से कहीं और ट्रांसफर होता है तो उसके अकाउंट्स को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द न्यू स्टेब्लिशमेंट पीएफ अकाउंट। अगर दोनों अनकवर्ड है उस पीएफ में, स्टेब्लिशमेंट के पीएफ अकाउंट में डाल दो, और अगर दूसरी वाली जो कवर्ड है तो इस केस में आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट है उसमें पैसा डाल दो। कब ट्रांसफर करना है, अगर एम्प्लॉय डिजायर करता है, एम्प्लॉय बोलता है नहीं यार मेरा पैसा यहीं रहने दो, मेरे को यहाँ ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, जब भी मेरे को निकालना होगा मैं यहीं से निकाल दूंगा, तो आपको वहीं रखना है, नहीं तो आपको उस केस में अगर वो चाहता है कि ट्रांसफर है तो उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेक्शन 17A ओवरराइडिंग इफेक्ट। जो भी ईपीएफ के प्रोविजन है ना, वो लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के अगर कोई प्रोविजन है उससे कॉन्फ्लिक्ट खाते हैं तो ईपीएफ एक्ट के प्रोविजन जो है वो ओवरराइड कर जाएंगे, एलआईसी के जो एक्ट के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट सेक्शन 17B लाइबिलिटी ऑन द ट्रांसफर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगर मान लो कोई एस्टेब्लिशमेंट ही ट्रांसफर हो गई, मतलब एस्टेब्लिशमेंट का पहला ओनर कौन था लेकिन अभी ओनर चेंज हो गया, आपने सेल कर दी, लीज कर दी, गिफ्ट कर दी किसी भी तरीके से, तो दोनों ट्रांसफर और ट्रांसफरी जो है जॉइंटली और सीवियरली लाइबल होंगे फॉर द ड्यूज टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर। देखो टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर में दोनों की लाइबिलिटी हो जाएगी, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफरी की हो जाएगी, और जो ट्रांसफरी की जो लाइबिलिटी होगी इट विल बी अप टू द वैल्यू ऑफ असेट्स ऑब्टेन्ड विया ट्रांसफर। मतलब मान लो ए ने बी को कंपनी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर दोनों की लाइबिलिटी रहेगी, क्योंकि अब कंपनी का मालिक कौन हो गया, बी हो गया, और उससे पहले को भी काम कौन कर रहा था, ए कर रहा था। बी की लाइबिलिटी अप टू द डेट ऑफ लाइबिलिटी कितनी होगी, टू द वैल्यू ऑफ असेट्स ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफर। मतलब जितना ट्रांसफर से पैसा आया है ना उतनी ही बी की लाइबिलिटी कितनी है, जितना ट्रांसफर से सामान आया, एसेट्स आई हैं, तब तक तो बी पैसा कर देगा। लेकिन मान लो बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर ए ने कुछ कपले किए थे और वो पैसा रिकवर नहीं हो पाता है फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द कंपनी ना, तो उस केसेस में ए की पर्सनल जो एसेट्स हैं वो भी सीज की जा सकती है। हमने देखी थी, अगर कोई भी एम्प्लॉयर करता है तो पहले तो हम स्टेब्लिशमेंट से पैसा निकालेंगे, वहां से पैसा नहीं आता तो उसकी पर्सनल एसेट्स भी सीज कर सकते हैं। लेकिन जो बी होगा उसकी सिर्फ हम जितनी उसकी वैल्यू ऑफ असेट्स है उस कंपनी की उतनी ही सीज कर सकते हैं, उसकी पर्सनल एसेट्स तक नहीं जा सकते हैं अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। हाँ, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर अगर बी कुछ कपला करता है तो उस केस में पहले बी की एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स जाएंगे, उसके बाद में बी की पर्सनल एसेट्स भी जा सकती है। तो जो भी इंस्पेक्टर्स अपॉइंट हुए, जो भी अथॉरिटी सेक्शन 7A में आई, एपीएफसी, एओए कोई भी है, उन सबको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है अंडर द सेक्शन ऑफ, अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। सो वी आर डन विद
दिस एक्ट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो प्रीवियसली आस्क किए गए थे इस एग्जामिनेशन में। जैसे एपीएफसी 2023 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डेट मस्ट बी एम्प्लॉयड। हमने कहाँ बात की थी, सेक्शन 16 में कोऑपरेटिव एक्ट, कहाँ पे कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर में जो एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर हुई है, या फिर जो मिनिमम विदाउट द एड ऑफ पावर काम कर रही है, या फिर उसमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से कम एम्प्लॉयज है, तो वो एक्ट जो है एग्जम्प्टेड हो जाएगी फ्रॉम दिस एक्ट। तो ये कौन कौन सी एस्टेब्लिशमेंट होंगी, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट मस्ट बी एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट फंक्शनिंग विदाउट द एड ऑफ पावर एंड रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 for it to come under the preview of EPF Act and Miscellaneous Provision Act 1912। मतलब मिनिमम कितने एम्प्लॉयज चाहिए, मिनिमम चाहिए 50 एम्प्लॉयज। 50 से कम है तो वो एग्जम्प्टेड हो सकती है, 50 से ज़्यादा है तो वो एप्लीकेबल हो जाएगी वहाँ पे EPF एक्ट के प्रोविजंस। हमने देखा था, हमने बात भी की थी। इसी तरीके से कहीं पे नंबर्स दे रखे हैं, कहीं पे स्पेसिफिक सिंगल अथॉरिटी की बात की है, सिंगल ट्रिब्यूनल की जैसे बात की थी हमने, तो वहाँ पे ये एक्ट वहाँ पे वो प्रोविजंस जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। What is the minimum number of employees required to be working in an establishment so that employer, with the authorization of majority of the employees, may apply to the central government for the permission to maintain a separate provident fund account in the EPF Act। separate account कब हो सकता है, अगर उसके पास 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, प्लस मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज का कंकरेंस है। ईओ का है कि मैच द लिस्ट, ये मतलब बहुत सारी एक्ट के प्रोविजंस को मिला के ये बनते हैं। तो इस एक्ट में हम देखते हैं कि दे रखा है कि मैच द फॉलोइंग, कौन से ऑफिसर्स की या कौन से जो प्रोविजंस है कौन सी एक्ट के अंदर में मेंशन्ड है। हमने रिकवरी ऑफिसर की बात की इस एक्ट के अंडर में, तो रिकवरी ऑफिसर किस में आ जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1952। बाकी सारे जब एक्ट्स पढ़ लेंगे आप में, तब आपको क्लैरिटी आएगी कि कौन कौन सा प्रोविजन जो है कौन कौन सी एक्ट के अंडर में मेंशन्ड है। तो मल्टी एक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको सारी एक्ट के प्रोविजंस के आइडिया होने चाहिए, कम से कम 2 या 3 एक्ट के प्रोविजन के आइडिया होने चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट्स एज अपीलेट अथॉरिटी अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। हमने बात की थी ट्रिब्यूनल जो है वो अपीलेट अथॉरिटी की तरह काम करेगा। कौन सा ट्रिब्यूनल होगा, वो होगा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। Which one of the following statement under the Employee Provident Fund Act 1952 is not correct? इट मेक्स द नॉट करेक्ट है, हमेशा नॉट करेक्ट जब भी आए आप सर्कल कर दो पेपर के अंदर में, ताकि आपको हमेशा क्वेश्चंस को देखो ना, करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा है कि वो नहीं पूछा है, वो उसको देखना है। जब भी नॉट करेक्ट आए या करेक्ट आए ना, उस पर सर्कल कर दो ताकि आपको क्लैरिटी रहे। कहीं पर क्वेश्चन क्या होता है, पूछा करेक्ट होता है आप नॉट करेक्ट लगा के आ जाते हैं, नॉट करेक्ट पूछा होता है आप करेक्ट लगा के आ जाते हो। नॉट करेक्ट कौन सा है, इट मेक्स प्रोविजन फॉर द पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन, इट मेक्स प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम्स। The provision of the act shall not be applicable to cooperative societies employing 50 or more persons working without the aid of power, or the employer contribution to the fund is based on basic wage plus DA plus RA of the employee। देखो, बेसिक वेज प्लस DA प्लस RA है, सही है। हम पेंशन स्कीम की बात के लिए प्रोविजंस बनाते, सही है। हम EDLI स्कीम के लिए प्रोविजन बनाते, सही है। हम PF स्कीम के लिए प्रोविजन बनाते, सही है। लेकिन ये एक्ट कब एप्लीकेबल नहीं होगी, जब 50 से कम एम्प्लॉयज है, 50 या 50 से ज्यादा है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले से 2 बार क्वेश्चन आ रखा। व्हाट इज द कंट्रोल्ड इंडस्ट्री अंडर दिस एक्ट, हमने बात की थी डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर में, एनी इंडस्ट्री which any industry the control of which by union has been declared by any central act to be expedient in the public interest। तो हो जाएगा फर्स्ट किसने किया है, यूनियन ने डिक्लेयर किया है सेंट्रल एक्ट के अंदर में, नॉट द स्टेट बाय स्टेट एक्ट, नॉट द म्युनिसिपल बॉडीज बाय म्युनिसिपल एक्ट, और नॉट द स्टेट बाय सेंट्रल एक्ट, यूनियन बाय सेंट्रल एक्ट। सो ये थी एक्ट, EPF एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट for this particular EPFO examination, whether it is for APFC or whether it is for EOO। Also, when you will enter the service ना, this is the Bible for you। मतलब आपको बाइबल बोलो, कुरान बोलो, भगवत गीता, आपके लिए सब कुछ यही है। You have to rely on this particular act for all the administration of EPFO organization। So we will meet in the next lecture।